what are emotions? एक normal psychological response towards something happening externally. Hi Shivam, welcome on Road with Sneha. दो लोग अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, how can they actually identify the other person's emotional quotient? 20 साल पुराना रिलेशनशिप versus आज का रिलेशनशिप, both partners can have that fear in their mind that it can happen anytime. Lot of artists, they have बहुत दुखी कहानी होती है. जितना strong expression करने की need, उतना creatively कुछ art निकल कर आएगा. Do you think that we also borrow emotions from our parents? Absolutely. कुछ चीजों में हम इंट्रोस्पेक्ट करके चीजों को चेंज कर लेते हैं कि माय फादर इज अ वेरी एंग्री पर्सन, आई डोंट हैव टू बी एंग्री पर्सन. आपको लग रहा है कि आप बहुत अपने पर हीलिंग कर लोगे तो आप परफेक्ट पेरेंट बन जाओगे अपने आने वाले जनरेशन के लिए. नो, यू आर स्टिल गोइंग टू बी इम्परफेक्ट पेरेंट्स. सोचो अगर आपके सामने एक शेर आ जाता है, शेर को देखा, आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है भागो, तो ब्रेन ने ये बात पकड़ ली थी कि फॉर अस टू सर्वाइव इन द वाइल्ड वी हैड टू डेवलप समथिंग इंटरनली दैट हेल्प्स अस रिएक्ट इंपल्सिवली फर्स्ट, देन थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अगर मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ कहा, यहाँ कोई शेर नहीं है, बट फिर भी मेरा गुस्सा कह रहा है कि अभी रिएक्ट करो. पैटर्न बात की जाए हैप्पी टू गो लकी लोगों के, उनके केस में ये होगा कि स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट रिलेशनशिप में एंड सडनली ग्राफ ऐसे गिरना चालू होता है. Everybody today wants to become more emotionally available for their partners. Whoever's watching this podcast, how can they start working on their emotional availability? First, understand what exactly are the emotions you feel on a day-to-day basis, and that starts with Hey you, welcome to another exciting episode on Roar with Sneha. I am your host Sneha Desai, and Roar is all about making your relationships better and upgrading your life with every episode. But before we go ahead, I request you to hit that subscribe button because that helps us build a better community and get better guests on this show. So it's a request that if you're watching this episode, please go hit the subscribe button. So आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मैथ्स कैसे सॉल्व करना है, साइंस को कैसे समझना है, बट हमें कोई ये नहीं समझाता दैट हाउ टू प्रोसेस योर इमोशंस, what you really feel, how does one understand it. We have Shivam out here who's an emotional intelligence coach and we are going to dive deep into the world of emotions. रोज की जिंदगी में हमें काफी कुछ फील होता है. वी फील हैप्पी, सैड, एंग्री. वी सप्रेस सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंस विद इन. बट डू यू नो दैट ऑल दिस शेप्स आवर relationships, our choices, and even our health? So get ready to take notes and watch this episode till the end because I promise you that by the end of this, you'll be able to understand your emotions better and it will change your relationships and your life. So let's dive deep into the world of emotions. Let's roar. Hi Shivam. hello, hi, how are you? Good, how are you? I'm also doing good. Welcome on Road with Sneha. Thank you so much for having me. Yes. So, Shivam, you are an emotional intelligence coach. तो आपने क्या पढ़ाई किया है exactly? पढ़ाई कुछ और किया था. अब I'm doing a different study. अच्छा. So basically, I did my bachelor's, master's, and everything in aerospace engineering. I was working as a researcher, as an assistant professor in aerospace engineering. Yeah, because I read about this and I was like, aerospace से emotional intelligence coach, like काफी अलग field है. एक psychology, एक science है, तो आप कैसे navigate? हाँ, so that's the whole point about it. That science में एक सबसे बड़ा point होता है to think, to be logical about, to be able to get answers about what things happen and why things happens, the way they do basically. तो ये जो point था ना, that curiosity of getting answers about how things are actually operating and moving around, that led me towards seeking more answers about human brain, about human mind, about life in general. Okay. And that is what drove me towards getting deeper into that particular topic. एक point आया जहाँ पर that curiosity also led me into creativity in terms of writing. So 7-8 साल हो गए इस बात को अब तो. I wrote my first book, How to Unleash Your True Potential. And that was again just a very sincere and a very, maybe, I mean, 8 साल पहले I was a different person as well. It was a very early attempt to talk about this thing, that how people can understand themselves better, to do things, make certain slight changes in their life that can help them understand themselves better. And वो book था, and that book kind of took off very well. लोगों ने पसंद किया उस बुक को, people read, people liked it, and वहाँ से एक opportunity खुलनी चालू हुई regarding talking to people, getting invites for talks and workshops and events and so many other things around it. And जब वो एक opportunity खुला, so I understood this particular point कि book लिखने का मेरा purpose ही यही था, to help people understand it better. So when I started getting invites for talks and lectures and workshops, तो दिखा कि book से भी ज़्यादा better weapon है speaking. Writing is a weapon, right, to talk about what you're feeling and what you want to express. Speaking actually hits more directly. Yes. So that is where the workshops came into the picture. Okay. But then when I went for workshops, एक और limitation था कि workshop में फिर भी you can just talk about generic things. कुछ लोग आते थे बाद में कि ऐसा ये है वो है, तो पर्सनलाइज थोड़ा बहुत हो सकता था.
बट रियलिटी में इवेंचुअली क्या हो रहा था कि स्टिल वर्कशॉप जब खत्म हो गया, आई एम इन ऑन माई वे, दे आर ऑन द वे। तो वो 2-4-5 घंटे का इन्फ्लुएंस या 2-4 दिन का इन्फ्लुएंस विल इवेंचुअली गो अवे एज़ वेल। नाउ व्हाट टू डू अबाउट दैट? सो वहाँ पे एक थॉट प्रोसेस है कि एक्चुअली रियल इम्पैक्ट के लिए यू हैव टू डिग डीपर, एंड इट कांट बी जस्ट 2 or 4 hour वर्क, इट हैज़ टू बी मच डीपर वर्क। So that is where this coaching came into the picture. That is where I started working around getting some accreditations about it, and that is how I'm an emotional intelligence coach now. That helping people understand themselves better, and वहाँ पे फिर we do very rigorous work on themselves, on helping them understand their emotions better, managing them better, understanding चीज़ें कहाँ से आती है, क्यों आती है, and various things around it. So बहुत complex topic है, but obviously we'll talk a lot about it today. It's beautiful, why I'll tell you, because emotions itself is such an intangible, like उसको आपने जब साइंस में आप लॉजिक में लेके आ रहे हो, तो इन itself I think it becomes more easier to sort of understand, because सिर्फ emotions बोलना Hmm. कि मुझे ये फील हो रहा है, but actually getting some reasoning, some logic to it can actually decode so many things Absolutely. in itself. Absolutely. Yeah. So very basic question that I have is, what are emotions? It's a basic psychological response to a certain stimuli. Okay. Right. For example, this glass falls right now. तो हमारा कोई रिएक्शन रिस्पॉन्स आएगा उस चीज़ को लेकर, राइट? मे बी आई विल गेट स्केयर्ड और फ्राइटेंड और जस्ट नॉर्मली रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे, आई माइट गेट एंग्री एज वेल। तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा, एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स समथिंग हैपनिंग एक्सटर्नली, दैट इज व्हाट इमोशंस आर। Okay. तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, एंड दैट इज व्हाट कम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्पसेस। नाउ आई कैन से दैट आपको गुस्सा आ सकता है, मुझे डर लग सकता है Hmm. एक ग्लास के टूटने से। सो दैट इज वेरी ट्रिकी पार्ट कि इमोशंस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। Yeah. Why can the same situation, why can it trigger two different emotions in two different people? जनरली अगर हम जेनरिक लेवल पे बात करें तो जो बेसिक एजेंडा होता है इमोशंस का, इट इज टू हेल्प यू सर्वाइव Okay. इन सर्टेन वेज, राइट? हाँ. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का रीजन ही था दिस, दैट इज वेयर द इमोशंस केम इनटू द पिक्चर बेसिकली, अगर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ना चाहे, सोचना चाहे तो। बट अगर फिर भी हम बात करें कि पर्सनली हमारा डिफरेंट क्यों है, हम क्या फील कर रहे हैं आज और आप क्या फील कर रहे हो सेम चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर फीलिंग्स को हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे रादर देन इमोशंस। So what is the difference between emotions and feelings? राइट। सो बेसिकली इमोशंस का पर्पस, जैसे मैंने बताया, कि एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स अ स्टिमुलाई। फीलिंग्स आर अ परसेप्शन एंड a personal response to what I'm emotionally reacting at that particular point of time. Okay. Which means कि मेरा इमोशन जो रिएक्शन आया, मेरा परसेप्शन क्या था उस चीज़ को लेकर, तो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग। विच मीन्स कि यहाँ पे जो बात की मैंने गुस्सा और डर की, Hmm. तो आपको डर लग सकता है, मुझे गुस्सा आ सकता है, या आपको गुस्सा आ सकता है, मुझे डर लग सकता है। दैट इज़ माई परसेप्शन, एंड वेयर डज परसेप्शन कम फ्रॉम? माई पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज। Okay. तो अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा रहा है बचपन में, या सिचुएशंस ऐसे रहे जिस कारण से मे बी the fear was an apt response for you, for the glass falling off, because of whatever you saw growing up, you would react with fear. And मेरे लिए वो डर क्या माहौल था या गुस्से का माहौल था, तो I'll react with anger. So again, depends, वो perception कहाँ से build होगा, हमारे experiences से build होगा. So that is where the whole point about emotions versus feelings also come into the picture. But हाँ, people can have different emotions and feelings towards the same situation depending upon their considerations and environment and situations and genes. बहुत सारे complex roles play करते हैं इन चीज़ों को लेकर। Yeah, I mean, मुझे एक एग्जाम्पल याद है, लाइक आई रिमेंबर एक बार आई वॉज इन फ्रांस विद अ फ्रेंड, एंड वी वर क्वाइट यंग, कॉलेज टाइम रहेगा, एंड सडनली हमारी एक ट्रेन छूट गई, पूरा ग्रुप चला गया और वो बंद हो गया दरवाज़ा, एंड आई रिमेंबर टू ऑफ अस वर देयर, लाइक मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड माई रिएक्शन टू दैट सिचुएशन वॉज आई बर्स्ट आउट लाफिंग, एंड द अदर पर्सन पैनिक्ड. Like, he was like, what are you laughing? We don't have phones. Like, we were young because college grew tha. Right. And maybe for me, because I was like, ho jayega, manage. Maybe because as a child, I have seen that uncertainty can also be managed. Like, agar train, nothing can go wrong. But maybe for him, it was a different experience altogether. Absolutely. So, I remember, and he couldn't understand what am I going through. मतलब एक ही situation था कि ट्रेन छूट गई है, and मैं हंसे जा रही हूँ, and he was actually panicking. Right. So we were feeling different things at that moment. Absolutely, हाँ. And Based on your environment and based on how you saw life growing up. yes. And ये सेम चीज़ आप नोटिस करोगे एयरप्लेन में भी होता है। जब टर्बुलेंस हिट करता है तो देयर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन ग्रुप ऑफ पीपल जो मस्त अपना जो ईयरफोन्स लगा हुआ है, मूवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने हैं, रिलैक्स्ड इन एनी टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। द अदर ग्रुप ऑफ द पीपल आर वेरी स्केयर्ड। टर्बुलेंस आया एंड दे आर वेरी स्केयर्ड, दे आर सडनली टेकिंग नेम्स ऑफ द गॉड, उसको डर लग रहा है,
तो सेम टर्बुलेंस सेम है दोनों इंसानों के लिए, बट उस सिचुएशन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है. एंड एग्जैक्टली लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, हाउ वी डील विद अनसर्टेनिटी, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. कि अगर हम अनसर्टेनिटी से डील करना सीख जाए, दैट ओके दिस इज व्हाट आर माई टूल्स टू हैंडल अनसर्टेनिटी और डील विद अनसर्टेनिटी, सो समहाउ उसे मैनेज करना आसान हो जाएगा और मेरा रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम पे नहीं निकलेगा. बट इफ अनसर्टेनिटीज बिकम अ चैलेंज फॉर मी, देन आई विल पैनिक ऑब्वियसली. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हम बात करेंगे इस बारे में. सो कैसे लोग, बिकॉज वी कम टू दिस, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि अगर लोग, मतलब आई एम श्योर दैट वी आर लिविंग इन अनसर्टन टाइम्स टुडे, एंड इट इज़ बिकमिंग इवन मोर स्ट्रेसफुल विथ एवरी डे एंड एज. राइट नाउ इफ़ यू सी, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रहा है सिचुएशन. छोटी छोटी बातों पे नाउ वी कैन सी दैट एक एंग्जाइटी आना, एक स्ट्रेस आना, it's increasing. So how can people actually build themselves, like resilience कैसे build कर सकते हैं to actually face uncertain times? राइट. सी अनसर्टेनिटी आज नई नहीं है, अनसर्टेनिटी हमेशा से रही है. द लाइफ एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ इज अ वेरी अनसर्टेन स्पेस एंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर ऑलवेज आउट ऑफ अ कंट्रोल. इफ यू थिंक अबाउट लाइफ, इट्स जस्ट अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन ऑफ थिंग्स दैट आर इन आवर कंट्रोल. Majority is always out of our control, right? But the problem that we are facing today right now is not because of the uncertainty, it's because the number of variables carrying those uncertainties have increased, Okay. which means Example? रिलेशनशिप की बात करते हैं. हाँ. तो आज से 50 साल, 50 तो बहुत दूर हो गया, 20 साल पहले या 25 साल पहले अगर रिलेशनशिप होता किसी का, टू पीपल गेट मैरिड, तो उनके पास अनसर्टेनिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑफ नॉट, इफ द रिलेशनशिप नॉट वर्किंग आउट और इट काइंड ऑफ गोइंग टू वेस्ट. ये होता कि शायद द पर्सन is in a physical abuse, the person is hitting the person, the person is domestic violence, sexual abuse, or the person is cheating on another person. ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती, बट इम्पैक्ट और द वेरिएबल जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता था वो बहुत कम होते, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स. फिजिकल अब्यूज फिर भी था, लेकिन ये चीटिंग का और बाकी चीज़ों का बहुत कम था. हाँ, होता था, Accessibility कम थी. एग्जैक्टली, तो होता था उस वक्त भी, ऐसी बात नहीं है, बट कम थे चांसेस. आज के डेट पे वेरिएबल्स एक स्टेप आगे आ चुका है, राइट? विच मीन्स कि 20 साल पुराना रिलेशनशिप वर्सेस आज का रिलेशनशिप, आज बोथ पार्टनर्स कैन हैव दैट fear in their mind that it can happen anytime. Yeah. Because you both have the phones in your hand and one small thing can lead to another Yeah. and it can happen somewhere, right? Yeah. So somehow वो uncertainty का element बढ़ गया. तो वो प्रॉब्लम वही थी, बट एक वेरिएबल ऐड हो गया बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एज वेल, राइट? सेम चीज़ गोज विथ जॉब्स एज वेल, कि जॉब मैं कर रहा हूँ, हमारे फादर जॉब कर रहे थे, रोज जॉब कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, काम चल रहा था, अच्छे से चल रहा था. आज एक अनसर्टेनिटी में ऐड हो गया, AI, राइट? दैट AI कैन टेक योर जॉब, Yeah. एंड विथ पासिंग प्रोग्रेसिंग टाइम इट इज एक्चुअली टेकिंग अवे जॉब्स. Yes. तो अब हमने अपना काम किया, हमने इंजीनियरिंग की, हमने डिग्री निकाला, हमने सब कुछ पढ़ाई की, मेहनत की, रिसर्च किया, सब कुछ किया, एंड सडनली AI आता है, वो हमारी जॉब को ले जाता है. तो अनसर्टेनिटी एलिमेंट बढ़ गया ना, कि हमने जॉब इतनी मेहनत क्यों की, ताकि हम जॉब मिल जाए, एंड आई एम सर्टेन अबाउट माई जॉब, आई एम सिक्योर अबाउट माई जॉब. तो जो चीज़ें अनसर्टेनिटी के एलिमेंट और वेरिएबल्स को इंक्रीज करा देगा, ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज देयर. Yes. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि हमारे आज के करंट एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग because of how society and technology is updating itself. Now, how to handle ourselves in those situations? Again, preparedness, कि हम खुद को प्रिपेयर रखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग एंड वर्किंग मोर ऑन द सर्टेन एलिमेंट्स rather than the uncertain elements. Which means कि if I focus too much on the uncertainties, then शायद I'll fall prey to those uncertainties. If I focus on the certainties, I'll make them my strength and I'll be someone who cannot be defeated by uncertainty. Like relationship की example लेते हैं. If I'm too much bothered about what my partner is going to do after a fight, and I'm so obsessed about it कि मेरा normal relationship में ही इतना डर का माहौल बना हुआ है, तो I'm actually being driven by uncertainty. But if I'm focusing on the certainty, okay, even if after a fight, I know what to do about it. I know how to make it up. I know how to resolve that conflict. Know how to be there for my partner, and my partner knows the same. So taking actions जो अपने हाथ में है, Exactly. उस पे फोकस करना. उस पे फोकस करना, तो that gives you power. Yeah. That gives you confidence. And that gives you liberty to move ahead. वरना the more you focus on the uncertainty, you would eventually end up feeling कि सब कुछ भी हाथ में नहीं है, and that is a very frustrating and a very hopeless feeling to have. Yeah. Right? तो वो चीज़ों को एड्रेस करना कि what is in my hand, what are you know certain elements, let's understand that, identify that and work more on those. Getting back to emotions यहाँ से,
people struggle with identifying their emotions in the first place. So why is it that people don't know what they are feeling emotionally? Like काफी बार एक unrest सा है inside and you don't know what is exactly happening to you. So why are people, you know, Right. struggling with identifying their emotions? Right. So there are two things. There are pleasant emotions and there are unpleasant emotions. Okay. जो हम normally बोलते हैं positive emotions और negative emotions. हाँ. They're not positive or negative. They're pleasant or unpleasant. Okay. Because emotions are not supposed to be positive or negative. Every emotion is coming with a purpose. अगर आप सैड फील कर रहे हो तो बिना मतलब का सैड नहीं फील कर रहे होगे. Your brain or your biology is not exactly pushing you to be sad without any purpose. कुछ तो रीजन है ना. You're dealing with a loss or grief or whatever that is. That is why you're feeling sad. तो पहले समझना कि जब प्रेजेंट इमोशन होता है उनको डील करने की हमारे पास टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. राइट. आई एम हैप्पी, I'll be excited, I'll enjoy, I'll celebrate, I'll party. So that's my coping mechanism to deal with happiness. But the moment it comes to unpleasant emotions like sadness, anxiety, fear, anger, पहले तो एक लेबल कर दिया जाता है कि गलत चीज़ें हैं. तो our chances of running away from those things automatically increases. Secondly, they're unpleasant in nature. मतलब they're heavy feel होता है. तो anyway we want to avoid it. हाँ. तो अब देखो दो चीज़ें हो रही है. पहला तो खुद इंटरनली बॉडी उसको पुश कर रहा है हेवी फील करा के और डिफिकल्ट फील करा के कि नहीं इसको नहीं ज़्यादा फेस करना है. दूसरी चीज़ सोसाइटी भी बोल रही है कि नहीं ये गलत चीज़ें हैं, दिस आर रॉन्ग. एक तो अपना हेवी फील होना वर्सेस सोसाइटी भी कह रही है ये गलत है, गुस्सा करना गलत है, सैड मत रहो ज़्यादा, एंजॉय करो लाइफ. क्या क्या हो गया, क्या ही हो गया ज़िंदगी में प्रॉब्लम. हाँ. जेलस मत फील करो. मतलब which is a very normal, like कभी कभी it's a human tendency to feel it, but then immediately you feel regret, you feel guilt कि यार oh I'm a bad person because I felt jealous about this thing, I felt envious about these things. But I feel those emotions just crop up out of nowhere even if you're not thinking about those emotions. So like Inside Out movie में it's a very beautiful movie about emotions and all, very nicely decoded, and how it creates havoc when new emotions come in actually. Yeah. एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि वो अनप्लेजेंट है तो ब्रेन डज नॉट वांट टू गो अराउंड इट. सोसाइटी ऑल्सो टेल्स यू कि इनको डील करना अच्छा नहीं, मतलब इट्स नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डील विद दोज थिंग बिकॉज नेगेटिव थिंग्स, द नेगेटिव इमोशंस, सो डोंट फील दोज थिंग्स. तो दो बर्डन आ गया. अब थर्ड बर्डन जो हमने वेरिएबल की बात की पहले, करंट इन्वायरमेंट ऑफ बाईपासिंग दोज इमोशंस. अब इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव सो मेनी एम्पल नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू हेल्प अस बाईपास दोज इमोशंस. So identify ही नहीं हो रहा है. हाँ, जैसे अब मुझे सैड फील हो रहा है, क्या मैं करूँगा? नॉर्मली क्या करोगे? आप करोगे, मैं क्या करूँगा? इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने लगेंगे या ज़ोमैटो पे कुछ ऑर्डर कर देंगे या अमेज़न पे कुछ ऑर्डर कर देंगे. तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. बाईपास करो अपने इमोशन. तो यू फील समथिंग, यू डोंट वांट टू फील दैट. इट्स अ स्केरी थिंग, इट्स अ डिस्टर्बिंग थॉट. बाईपास कर दो उसको. अभी नहीं फील करना. आई डोंट हैव द टाइम टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, राइट? सो बाईपास कर दिया हमने. तो जब बाईपास किया वो गायब हो गया. हमें लगा गायब हो गया, गायब तो हुआ नहीं, हमें लगा गायब हो गया और पीछे कहीं दब गया. नौ सेकंड बार फिर से कुछ होता है वैसा, अगेन हम बाईपास कर देते हैं, फिर वो दब गया. तो ऐसे इंस्टेंसेस 5, 6, 10, 15 बार आप कर पा रहे हो कि ठीक है बाईपास कर दिया, बाईपास कर दिया, बाईपास कर दिया. 15 बार 16वीं बार नहीं हो पा रहा बाईपास. इतना घरा भर चुका है, बाईपास इतना हेवी हो चुका है कि भर नहीं. अब यू आर नॉट एबल टू बाईपास दैट इमोशन. आप मोबाइल भी खोल रहे हो तो आप नहीं कर पा रहे उसको बाईपास because it's so heavy, it's hitting you on the face. So when it becomes very heavy, then you're not able to bypass it and then it hits you. And the stronger it is, the heavier weight it is carrying, the more it disturbs your life. तो तब हमें हिट करता है. तो प्रॉब्लम थर्ड जो प्रॉब्लम आया है कि हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ रिसोर्सेज है टुडे, आज के डेट पे टेक्नोलॉजी के, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, आई मीन सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स हैव कम आउट ऑफ इट. बट अगेन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इट्स काइंड ऑफ पुशिंग अस अवे फ्रॉम फीलिंग दोज इमोशंस. तो अब जब फील ही नहीं करेंगे तो नेचुरली वोकैबुलरी भी बनेगी नहीं कि 4-5 चीज़ें हमें पता है, हैप्पी, सैडनेस, एंग्जाइटी, फियर, ये 4-5 इमोशंस पता है हमें. बट एक्चुअली में बहुत डाइवर्स इसका वोकैबुलरी है. Okay. अनलेस एंड अनटिल यू डिग डीपर इनटू दोज थिंग्स, क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, किस तरीके से फील हो रहा है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉज बिहाइंड दोज फीलिंग्स. Okay. If I understand them, then I'm able to work around them. If I do not understand them, they keep hanging inside them and they take shapes and forms. Like jealousy आपने बात करी. You are feeling jealous today and tomorrow you're feeling anger. So what really happened? आपको jealousy हुआ अपने partner पे because of certain reasons. आपने उसको address नहीं किया. No, I cannot feel jealous. I mean, it's a very bad thing for me to feel jealous about my partner, right? Or someone else, let's say ex. तो jealousy से
जेलसी फील हुआ, हमने उसको बाईपास कर दिया, नो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग टू हैव, साइड करो इसको। लेकिन फीलिंग तो हमने एड्रेस नहीं किया ना, प्रोसेस नहीं किया उस फीलिंग को, तो आज वो जेलसी अंदर अंदर दबती रह गई। कल किस फॉर्म में निकल रहा है? गुस्सा। नाउ टुमारो आई एम शॉटिंग एट माय पार्टनर, इररिलेवेंट, कोई रीजन नहीं है, रैंडमली मैं क्रॉप रीजन निकाल के ला रहा हूँ, एंड आई एम शॉटिंग एट माय पार्टनर, आई एम एंग्री एट माय पार्टनर। सो वाज इट एक्चुअली एंगर? No. इट इज जेलसी, इट वाज जेलसी। तो सेम चीज कि बहुत सारी इमोशंस को जब हम एक्चुअल समय पे डील नहीं करते तो दबना चालू हो जाता है, एंड देन इट कम्स आउट एज अदर इमोशन, सेकेंडरी इमोशन फॉर दैट सॉर्ट, एंड दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। बट टॉकिंग अबाउट इट, जब हम बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, तो बाईपासिंग इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग। Okay. Bypassing can be a very positive and a very influential tool as well if you know how to use it well. Okay. Which means अगर आज मैं बहुत डिफिकल्ट कुछ फील कर रहा हूँ इमोशनली, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी कि अभी जरूरत बैठो पकड़ के इस इमोशन को लेकर। आज मैं सैड फील कर रहा हूँ, नहीं अब तो मैं बेड पे जा रहा हूँ, पुराने गाने और सैड सॉन्ग लगा के सुनूंगा और फील करूंगा सैडनेस को। तो क्या करना है तो फिर? फील करो, हाँ। अगर नहीं है बहुत डिफिकल्ट फील उनका बाईपास भी करो, बट कम बैक एट इट। हम आधा काम करते हैं, हम बाईपास करते हैं एंड देन भूल जाते हैं। The real path should be bypassing it when it is very strong and then coming back at it when you're in a better emotional state. अगर आप वापस नहीं आओगे इन चीज़ों के ऊपर, तो वो चीज़ें दब जाएंगी, जो किसी और फॉर्म में निकल कर आएंगी। तो बाईपासिंग कैन बी अ ग्रेट टूल इफ यू आर यूजिंग इट एक्चुअली इन अ बेटर वे। So momentary अगर आपको bypass करना है so that you are not sinking yourself in that emotion, यस, तो maybe momentary आप कुछ और कर लो, कर लो। but then after certain days maybe or whatever whatever works, months, days, hours, seconds, whatever helps you works, yeah, but you get back. get back to it. Maybe बात करो किसी से, लिखो उन चीज़ों के बारे में, खुद प्रोसेस करो, but you can only do that from a rational state of mind. Again, if you're driving deeper into those emotions work in a way to help your logic not work. एक basic term होता है amygdala hijack, Amygdala hijack. right? So amygdala is that emotional part of the brain, and there's a very interesting term called amygdala hijack. Okay. So दो parts होते हैं brain के, एक होता है amygdala, the emotional part of the brain, and the prefrontal cortex, the logical part of the brain. The way our body and brain has evolved, it has evolved to survive. अब आप खुद सोचो, अगर आपके सामने एक शेर आ जाता है, आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या होगा? What will your reaction be? Of course, fear. Fear. Yeah. You'd want to run away, Run protect away. yourself. Yeah. तो आपको बेसिक, आपने शेर को देखा, आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है भागो या बचाओ खुद को, छुपो, व्हाटएवर यू हैव टू डू। Yeah. तो वहां पे क्या आपने लॉजिक कहीं अप्लाई करा? नहीं, अगर आप वहाँ लॉजिक अप्लाई करते तो क्या होता? तो मैं शायद से रिएक्शन रिएक्शन आपका डिले होता डिले हो जाता। हाँ, और आपको जान चली जाती। response, yeah, आपको जान चली जाती। yeah. अगर आप सोचने बैठ जाते यार शेर तो छोटा लग रहा है, शेर तो ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, तब तो शेर आपको खा चुका होता। Yeah. गेम ओवर। Yeah. सो ब्रेन ने ये बात पकड़ ली थी कि फॉर अस टू सर्वाइव इन द वाइल्ड वी हैड टू डेवलप समथिंग इंटरनली दैट हेल्प्स अस रिएक्ट इम्पल्सिवली फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शेर आ गया है, यहाँ पे सोचने का समय नहीं है हमारे पास। तो इस जो प्रोसेस को कहते हैं ना कि सोचने का समय नहीं है हमारे पास, पहले रिएक्ट करो, दिस इज कॉल्ड एमिगडाला हाईजैक। Okay. मतलब इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट the emotional part of the brain hijacks the rational part of the brain. Yeah, just run. Like, Take a reaction. take reaction. Take an action here. तुरंत react करो. Impulsively react करो. That is the only thing that is going to protect your life. And that saves a life. But the only problem today is कि अब हम जंगलों में नहीं रह रहे. Which means अगर मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ कहा आज, यहाँ कोई शेर नहीं है. There is no animal here. Yeah. But फिर भी मेरा गुस्सा कह रहा है कि अभी react करो. Now this is what goes wrong. तो उस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाना और चेंज कर पाना बहुत ज़रूरी होगा कि अंडरस्टैंडिंग थ्रेट कौन सा सच है, कौन सा सच नहीं है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इमोशंस वर्क बिकॉज उसको बचाना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम कर रहा था। अब सोसाइटी इवॉल्व कर गई है तो शायद उतनी ज़रूरत नहीं है रिएक्टिविटी की, अब रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। तो हमें खुद को अडेप्ट करवाना ज़रूरी है उस सेंस पे लेकर। ओके। सो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैं बचपन से ही शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या मैं बचपन से ही बबली हूँ। सो what is this? Like, does that actually, is that your identity? No, of course not. It's not your identity. But हाँ, कुछ part have genetic dispositions to it as well. Okay. I mean, some bit of you is defined by your genetic, आपके parents का and आपके family members का, of course some part of it. But a lot of the other part of it, the behavior front, is from your conditioning, from your environment as well. Which means कि अगर short tempered की especially जब हम बात कर रहे हैं तो short tempered is a reaction. You mentioned that कि कुछ होता है and तुरंत हम react करते हैं, कि तुरंत गुस्सा आता है हमें उस चीज़ को लेकर. So that is more of a reactive thing, right? It's not about your genes. It's not about who you are as a person. It's more about how you react to a particular environment.
अब ये क्यों होता है? ये काफ़ी बार वैसे जगह से ओरिजिनेट करता है जहाँ पर इफ़ यू टॉक अबाउट समथिंग एंड यू फील कॉन्स्टेंटली नॉट बीइंग हर्ड और अंडरस्टूड, राइट? व्हिच मीन्स आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट कोई समझ ही नहीं रहा उन चीज़ों को। आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई समझ ही नहीं रहा उन चीज़ों को। एंड यू कॉन्स्टेंटली फील दैट आई एम स्टक अप इन अ प्लेस वेयर नो वन इज़ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हू एम आई एज़ अ पर्सन। सो आपके लिए क्या हो, क्वेश्चन मार्क पड़ जा रहा है खुद की आइडेंटिटी के ऊपर। व्हाट डू आई डू अबाउट दिस थिंग? तो दिस क्वेश्चन मार्क क्रिएट्स अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एंड दैट कम्स आउट थ्रू एंगर। ओके। तो जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, उतना वो हेल्पलेसनेस की तरह बाहर निकलेगा, एंड दैट एंगर बर्स्ट आउट की तरह निकलेगा। एंड दैट इज़ वेयर वी पीपल स्टार्ट लेबलिंग देम एज़ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, कि यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी रिएक्शन आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तुम्हें। बट अगेन इट्स मोर अबाउट मे बी एनवायरनमेंट वैसा था, जहाँ पे कभी समझा नहीं किसी ने कोई, और वो उस तरीके से बंधता गया, एंड नाउ द पर्सन को आदत पड़ चुकी है तुरंत रिएक्ट करने की, बिकॉज़ अगर वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे तो इंटरनली डैमेज होना चालू हो जाएगा, राइट? बिकॉज़ दैट इज़ देयर प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। So basically, what is that short temper thing doing to you? It is protecting you. It is kind of shielding you from the outside noise of the world that you are nothing, you're zero, which you're not exactly fitting in. So by actually pointing out, you get that particular thing. एक और जो सबसे interesting चीज़ आता है, that most of the times that short tempered behavior is driven and followed by a reward. What ओके। is that reward? कि जब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ दैट ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मुझे मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है, कोई सुन नहीं रहा है, एवरीवन इज काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग मी, एवरीवन इज नॉट लिसनिंग टू मी, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी, नॉट सडनली आई शाउट एंड देन पीपल आर लिसनिंग टू मी। अटेंशन। मिल गया ना? हाँ। सो ब्रेन को क्या चाहिए? ब्रेन को चाहिए रिवॉर्ड। आपने क्या ऑब्जर्व करा एज अ चाइल्ड? आपने क्या ऑब्जर्व करा? मेरे इस तरीके से बोलने से नो वन इज लिसनिंग टू मी, व्हेन आई शाउट पीपल आर लिसनिंग टू मी, इट बिकम्स अ रिवॉर्ड फॉर मी। सो ब्रेन एसोसिएट्स दैट रिवॉर्ड विद दिस बिहेवियर, एंड देन एक आदत बन जाती है हमारी उस चीज़ को लेकर। बट द फनी थिंग इज़ कि उस एनवायरनमेंट तक शायद वो रिवॉर्ड या बिहेवियर वाज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ इट काइंड ऑफ हेल्प यू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। बट नाउ यू आर आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। ज़रूरत नहीं थी उस एनवायरनमेंट की और उस तरीके के बिहेवियर की, बट समहाउ वो सेम चीज़ रिपीट हो रहा है बाकी जगह पे। तो उसको कॉन्शियसली वर्क करना बहुत ज़रूरी है, वेयर इज़ इट एक्ज़ैक्टली कमिंग फ्रॉम एंड हाउ डू यू एड्रेस इट? हाउ डू यू रियली मैनेज इट? तो उसको जब एड्रेस करेंगे तो शायद वो शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर कम होना चालू हो जाएगा। एंड मेनी टाइम्स व्हेन यू वर्क ऑन दोज़ थिंग्स, सबसे ज़्यादा वो निकलती है अनमेट नीड्स फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके। They have so many unmet needs from the childhood that they keep on coming up. Like you feel unheard, you feel not understood, you feel worthless at times, and they keep cropping up in those anger bouts. Yeah, so many people will end up crying हाँ, because then suddenly everybody will stop and give you attention हाँ, बिल्कुल। because रोने से आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है। And that's the interesting thing, इसमें भी आप नोटिस करोगे ना कि a lot of the for a lot of women, when they are angry, they end up crying, Yeah, why? right? And for a lot of men, when they are sad, they end up being angry. Yeah. राइट। सो आप नोटिस करो कि मेन के लिए क्या एक बता दिया कि सैडनेस इज नॉट एन इमोशन दैट यू कैन एक्चुअली थिंक एंड प्रोसेस एंड एक्सप्रेस इट आउट। एज अ मैन अगर आप कोई लड़के को देखो और बोल रहा है कि यार बहुत सैड हो, यार बहुत लाइफ खराब चल रहा है, लोग क्या बोलेंगे? यार उठो काम करो, क्या क्या ये सब फालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, गेट आउट एंड वर्क, कुछ करो काम जाकर। तो सैडनेस एज अ मैन, आई डू नॉट हैव द लिबर्टी टू टॉक अबाउट माई सैडनेस, टू एक्सप्रेस माई सैडनेस, सो इट विल कीप ऑन पाइलिंग अप, एंड जब पाइल अप करके क्या बन रहा है? एंगर का फॉर्म ले रहा है। सो माई सैडनेस इज एक्चुअली कमिंग आउट एज एंगर, Or frustration, like men will be फ्रस्ट्रेशन, frustrated, yeah, like राइट, angry on things. एंग्री है, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड पर्सनैलिटी बन जाती है वैसी। एंड फॉर वुमेन एज वेल, कि वुमेन को बोला गया है एंगर इज एंटी वुमेन। Women cannot be angry, right? You have to be very sabhya and very sorted and very sharif, soft. Yeah. Being angry is not a womanly character to have, which means जब आप गुस्सा फील कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं इसको एक्सप्रेस करने का। What does it bring with you? Helplessness. When you're feeling helpless, what do you do about it? End up crying. You end up crying. Yeah. That's what happens. So majorly वो आपने बोला थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का है, बट एक्चुअली पर्सन का नेचर नहीं है, वो कंडीशनिंग की वजह से दैट नेचर गेट्स फॉर्म्ड, राइट? ओके। जब वन पर्सन इज लाइक, सो ये जो पर्सनालिटी बिल्ड हो गया है उनकी कंडीशनिंग की वजह से, जो इमोशंस फील कर रहा है, डू यू थिंक पीपल फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट? लाइक अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन विल हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप, अ बबली पर्सन जो एक हैप्पी गो लकी पर्सन है जो हमेशा हैप्पी दिखाता है, ऑनेस्टली समटाइम्स मे बी दे आर नॉट दैट हैप्पी, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज दिस सॉर्ट ऑफ शो अप इन योर रिलेशनशिप्स?
It certainly does. I mean, it shows up in a similar pattern. एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है जो आप कॉन्स्टेंटली देखोगे कि मेरा एक पैटर्न ऑफ अट्रैक्टिंग द सिमिलर सॉर्ट ऑफ पीपल कॉन्स्टेंटली हो रहा है, दैट आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग द सेम सॉर्ट ऑफ पीपल ऑल द टाइम, एवरी टाइम. व्हाई इज इट हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर वे? सेम कि मेरा अपना क्या उसमें रोल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी आउटबर्स्ट दिखा रहा हूँ अपने इमोशन का, एंड मेरे रिलेशनशिप्स इवेंचुअली बहुत जल्दी एंड हो जा रहे हैं. द पर्सन इज not being able to tolerate or accept this particular thing. Or even if I'm able to sustain a relationship, then I am the only person who is taking charge of the relationship. The other person is very, let's say, not really present in the relationship. Because maybe I'm the dominant one, the person को power ही नहीं मिल पा रहा है. तो आप notice करो क्या होगा, if I'm a short tempered person, which means I have this habit of constantly putting my emotions in a very strong and aggressive way. तो दो तरीके होंगे. नाउ आई मीट अ पर्सन जो सेम तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है गुस्से के साथ. यू शाउट, देव शाउट, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लड़ाई हो गई, खत्म हो गया. दूसरा तरीका, यू शाउट एंड यू मीट अनदर पर्सन हु इज अ बिट मोर ऑन द, लेट्स से, weaker side in the terms of emotional expressiveness, which means that they are not comfortable talking about themselves, talking about what they feel and what they want. तो they will take it. ठीक है, आप चिल्लाओ, मैं सुनूंगा. बट वो कितने देर वर्कआउट करेगा? तो आप डोमिनेंट इंसान बन जाओगे उस रिलेशनशिप के, दूसरा इंसान वीकर इंसान बन जाएगा. बट दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट पावर डायनामिक्स से इम्पैक्ट कर जाएगा. तो उस केस में भी यही होगा इवेंचुअली कि आपकी जो नीड्स है रिलेशनशिप के वही फुलफिल नहीं हो रहे, बिकॉज देन यू आर जस्ट टेकिंग द चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप. एट टाइम्स यू ऑल्सो वांट टू जस्ट रिलैक्स एंड ले बैक एंड वांट अदर पर्सन टू टेक चार्ज, बट वो भी नहीं हो पा रहा है. सो दिस इज वन पैटर्न ऑफ द शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. एंड अगर पैटर्न बात की जाए हैप्पी टू गो लकी लोगों के, तो अगेन उनके केस में क्या होता है कि दे ऑलवेज ट्राई टू शो अ वेरी हैप्पी पिक्चर, आइडल पिक्चर. तो उनके केस में ये होगा कि स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट, बहुत बहुत मज़े आ रहे हैं रिलेशनशिप में, एंड सडनली ग्राफ ऐसे गिरना चालू होता है. व्हाई इज़ दैट? हमें लगे कि शायद एवरीवन इज़ अ चीटर और एवरीवन इज़ जस्ट लव बॉम्बिंग मी. वी कैन यूज़ दिस टर्म टेक्निकल जार्गन्स एज वेल कि शायद लोग खराब है, ऐसा हो रहा है हमारे साथ. बट समवेयर हमारा उसमें अगर रोल देखा जाए, तो समहाउ मे बी आई एम प्रोजेक्टिंग सो मच फॉर आइडल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ देम दैट व्हेन दे फाइनली सी मी, इट कम्स एज अ शॉक. तो मैंने 6 महीने सिर्फ आइडल पिक्चर पेंट किया उनके सामने, दैट आई एम जस्ट रिलैक्स्ड एंड सॉर्टेड एंड द चिल पर्सन इन द रिलेशनशिप. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ, यू डू कुछ भी करो, मज़े है, एन्जॉय करो बस, राइट? सो नाउ बट सडनली 6 महीने खत्म हो गए, हनीमून फेज़ खत्म हो गया, नाउ रियल थिंग्स चालू हो रहे हैं. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हू इज़ दैट पर्सन. आई नेवर फेल इन लव विद दिस पर्सन अभी वाज़ तक तो ठीक हाँ, है. अभी तक ठीक था. यू वर वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी चिल एंड वेरी सॉर्टेड एंड वेरी हैप्पी. व्हाट हैपेंड टू यू? बट those were the needs I was just suppressing for so long, कि मैं दिखाना नहीं चाहता था वो नीड्स की. इफ आई ट्राई टू शो दैट पॉजिटिव साइड ऑफ मी, द पर्सन विल गो अवे फ्रॉम मी. सो आई जस्ट शो दैट नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, गो आउट एंड हैंग आउट विद व्हाटएवर एंड हूएवर यू वांट. तो मैंने वैसे रिलेशनशिप से बिल्ड करे जहाँ पे द पर्सन इज टेकिंग चार्ज ऑफ द नीड्स बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स. जब पता चल रहा है दोनों को, अगेन थिंग्स फॉल बैक. तो वहाँ भी चीज़ें उस तरीके से एंड हो रही है. तो अगेन द क्रक्स ऑफ द एंटायर पॉइंट इज दैट इफ यू आर एबल टू बैलेंस इट आउट इन अ पर्टिकुलर वे, दैट यू डोंट हैव टू बी दिस एक्सट्रीम और दैट एक्सट्रीम. Talk about your needs, understand your needs, understand about what you really want, and you don't have to go to the extreme to express your emotions. Either of the extremes, that being or constantly showing that positive side or constantly showing that anger side, both are protective mechanisms. हाउ डू यू फाइंड द बैलेंस कि कितना एक्सप्रेस करना चाहिए और कितना एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए? I think that is something that depends on adaptation and improvisation. हम रिलेशनशिप में कभी एक मैनुअल के साथ एंटर नहीं कर सकते कि ये मैनुअल है और ये 5 चीज़ें मुझे करनी है रिलेशनशिप में एंड देन रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाएगा. इट्स नॉट नेवर गोइंग टू हैपन लाइक दैट. यू हैव टू अडैप्ट एंड इम्प्रोवाइज. आप किसी इंसान से मिल रहे हो, उस अकॉर्डिंगली आप अपने सिचुएशंस को कैसे रखते हो, कैसे उसको समझते हो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे नहीं रिएक्ट कर रहा है. हाउ डू आई इम्प्रोवाइज बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन? सो दैट इज मोर अबाउट इम्प्रोवाइजेशन. बट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए नीड रिलेशनशिप से, दूसरा को क्या चाहिए वो मैं नहीं पता. हम कितना भी प्लान कर ले, इट विल ऑलवेज फॉल बैक अगेंस्ट अस. बट ये तो पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए. सो अगर ये वो कैसे, कोई एक्सरसाइज है जिससे मैं जान सकती हूँ कि मेरे क्या इमोशनल नीड्स हैं इन अ रिलेशनशिप? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई मीन देयर आर 9 इमोशन लीड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर इमोशन नीड्स है. मैं भेज भी दूंगा, यू कैन पुट इट डाउन देयर एज वेल. या एंड उसके अलावा जो पॉइंट आता है दैट अलाउज यू टू एक्चुअली वर्क ऑन दोज इमोशनल नीड्स आर इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द रोल इट प्लेज इन योर लाइफ. ओके. इफ़ यू हैव लिव्ड अ लाइफ जहाँ पे आपकी नीड्स को कॉन्स्टेंटली इग्नोर किया गया था, तो आपको शायद लगेगा कि मुझे ये नीड की ज़रूरत ही नहीं है. जो आज आप नोटिस करोगे ये चीज़ मेन एंड वुमेन में बहुत कॉमनली डिफरेंट देखा जाता है कि
मेजॉरिटी ऑफ द मेन को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है बहुत बचपन वाले एज से कि दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। आप किसी मेन को शॉपिंग मॉल में ले जाओ और बोलो कि बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ, दिल से कि क्या लेना है, तुम्हें सिलेक्ट करके दे दो, मुझे नहीं पता क्या लेना है, आई डोंट नो व्हाट टू बाय फॉर माई सेल्फ, Yeah. बिकॉज लगा ही नहीं कभी कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन टू सर्व, Yeah. टू थिंक अबाउट माई सेल्फ एज वॉट माई नीड इज आइडेंटिटी। मुझे है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाट टू आस्क फॉर माई सेल्फ, आई एम कॉन्स्टेंटली सर्विंग। तो समवेयर आई एम प्लेइंग एज एन इनविजिबल वॉरियर, कि मुझे बस वॉरियर बनना है लोगों के लिए और प्रोटेक्ट करना है उन लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कुछ नीड्स थी नहीं, मेरी भी कुछ नीड्स थी जो कॉन्स्टेंटली सप्रेस हो गई। तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जब तक इंटरस्पेक्ट नहीं करोगे कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, और मान लो आपकी जिंदगी भर की आदत पड़ चुकी है, एंड ये चीज़ आप नोटिस करोगे हमारे पेरेंट्स में या पिछले जनरेशन में बहुत ज़्यादा था, उनको आज बोलोगे चेंज करने को तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को बहुत रेयरली चेंज कर पाएंगे। I don't think they know also हाँ कि उनके साथ क्या हो रहा है इमोशनल लेवल पे. बिल्कुल। Because I think it's normal कि I don't know what to buy in a shopping mall. Like men don't even find it that इंटरेस्टिंग। it's not even a problem for them. हाँ हाँ For that matter of fact कि जैसे आपने बोला कि अगर आपको वो लग रहा है कि आप टाइम दो खुद को, बट काफी लोगों को वो प्रॉब्लम ही नहीं लगता कि आई एम नॉट सिटिंग डाउन विथ माई सेल्फ बिकॉज दे फील लाइफ इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. राइट राइट एब्सोल्युटली। वही तो वही ना प्रॉब्लम बन गया कि गोइंग टू द शॉपिंग मॉल बिकम्स अ बर्डन। या जो एक जोक चलता है ना इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, कि एक शॉपिंग मॉल में 3-4 सोफा या चेयर्स रखे, वहाँ पर 3-4 लोग मेन हैप्पीली बैठे हुए हैं। हाँ This is actually a projection of what exactly men are doing in that particular. Keep they're bored. They're very much bored, and I am that kind of person as well. There's no particular thing in saying that. क्यों? Because मुझे भी लग रहा है कि क्या मेरा क्या रोल है? I'll be bored enough. क्या देखना है जल्दी जल्दी शॉपिंग करो निकलते हैं। Why so? Because I don't find anything interesting there. Why? Because मुझे खुद को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है उस चीज़ में। Where to find joy in that? तो पॉइंट क्या, ये इट हैज़ बीन सीरीज ऑफ दोज थिंग्स। तो एक जो छोटा सा जोक भी चल रहा है, दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ इमोशनल सप्रेशन दैट इज कैरिंग विद इट। तो अब हाँ, अब उसकी बात करते हैं। तो अगर एज अ मैन आई हैव बीन कैरिंग दैट इमोशनल सप्रेशन फॉर सो मच टाइम, हाउ डू आई चेंज दैट राइट नाउ? या इट कैन ओनली चेंज टिल द पॉइंट आई अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं रिजेक्ट कर दूँ कि ये फालतू बातें हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो फालतू की बकवास ज्ञान है, लेकिन मैं समझूँ कि सच में ये है मेरे साथ, आई हैव डिफिकल्टी टॉकिंग अबाउट माई नीड्स एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट डू आई वांट फॉर माई सेल्फ, the last person to shop will be always me, because नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सेक्रीफाइस कर दूंगा, टॉलरेट कर दूंगा, यू शुड बाई फर्स्ट, द फैमिली शुड बाई फर्स्ट, उनको सर्व करना मेरा सुप्रीम ड्यूटी है, एंड विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, ब्यूटीफुल थिंग टू, आई मीन टू सर्व, बट अगेन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग इन द प्रोसेस and not taking anything in return, it becomes a burden eventually, and that burden also comes up in a very weird form, that you keep on passing the trauma onto the passing generations then, ओके कि अब जब तक आप स्ट्रांग हो, आप क्या बोलोगे, मैं सर्व कर रहा हूँ, लेकिन आप स्ट्रांग हर वक्त नहीं रहोगे, आप एक पॉइंट पे वीक होना चालू हो गए। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन, जो हमारे पेरेंट्स का जनरेशन था, वहाँ पे कॉन्स्टेंट हायरार्की था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे। ये किस थॉट से यार ओरिजिनेट कर रहा है कि मैं जब तक स्ट्रांग हूँ मैं कैरी कर रहा हूँ, जब तुम स्ट्रांग बनोगे तुम कैरी करोगे। तो हम डंप कर रहे हैं ना अपना ट्रॉमा एक दूसरे So do जनरेशन पे। you, yeah, but so do you think that we also borrow emotions from our parents? एब्सोल्युटली। अब तो जैसे आई मीन बच्चा जो देख रहा है अपने पेरेंट्स के इमोशंस, वो मिमिक कर रहा है उस चीज़ों को। आई सी एवरीथिंग अराउंड माई पेरेंट्स एंड आई कॉन्स्टेंटली मिमिकिंग दैट। So do you think like जो पेरेंट्स को खुशी दे रहा है, जो पेरेंट्स को सैडनेस दे रहा है, वही कहीं ना कहीं सेम चीजें हमने वही देखा है. हाँ तो आर ऑल्सो रिएक्शंस to life के circumstances are based on what my parents are feeling. I'm going to feel similar. 100%। अब कुछ चीज़ों में हम इंट्रोस्पेक्ट करके चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, Okay. जो मेजर चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि माई फादर इज़ अ वेरी एंग्री पर्सन, आई डोंट हैव टू बी एंग्री पर्सन, सो मैंने सॉर्ट कर दिया, नहीं एंगर तो बिल्कुल करना ही नहीं है मुझे, एंगर इज़ अ रॉन्ग थिंग, नहीं करना, गुस्सा करना ही नहीं है। लेकिन वो मेजर था तो देख पाए हम कि यार ये हम मिमिक कर रहे थे या हमें मिमिक नहीं करना, ये गलत चीज़ है। बट देयर आर सो मेनी टाइनी एंड माइन्यूट हैबिट्स दैट यू कॉन्स्टेंटली मिमिक फ्रॉम योर पेरेंट्स और द एनवायरमेंट अराउंड यू दैट यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। एंड हमें लग रहा है कि वो मेजर चीज़ को मिनिमाइज कर देंगे तो आई विल स्टॉप बिकमिंग लाइक माई पेरेंट्स एंड द टॉक्सिक ट्रेड्स दैट दे कैरीड। लेकिन माइनर तो जा ही रहा है ना कहीं ना कहीं। एंड इट्स नॉट सेइंग कि वो गलत थे, उनके भी अपने पॉजिटिव ट्रेड्स थे, उनके भी अपने नेगेटिव ट्रेड्स थे, हमारे भी कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, हमारे भी कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं, हम सब इम्परफेक्ट है। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस इज अंडरस्टैंडिंग दैट योर पेरेंट्स वर इम्परफेक्ट एंड यू आर इम्परफेक्ट, Yeah.
एंड यू आर गोइंग टू बी इम्परफेक्ट एज अ पेरेंट्स एज वेल इवेंचुअली गोइंग हेड। आपको लग रहा है कि आप बहुत अपने पर हीलिंग कर लोगे या काम कर लोगे तो आप परफेक्ट पेरेंट बन जाओगे अपने आने वाले जनरेशन के लिए। नो, यू आर स्टिल गोइंग टू बी इम्परफेक्ट पेरेंट्स। तो इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं कि वो इम्परफेक्ट था या हम परफेक्ट है। बट द होल पॉइंट इज टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व एंड अडेप्ट। अपने आपको स्पेस और लिबर्टी तो दो कि हम उस पर काम कर सके। अगर आपको बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है, अगर वो स्पेस नहीं दोगे खुद को कि नहीं, अपना ईगो डाल देते हो बीच में कि नहीं यही चलता है, यही चलता आ रहा है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो बीइंग ओपन एंड बीइंग लिबरल अराउंड इट कैन बी डेफिनेटली Can be. हेल्पफुल। Okay. So one question I have is, are memories linked to our emotions somewhere or the other? 100%। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि आप चीज़ों को जब ऑब्जर्व करते हो, सो एवरी डे ऑन अ डे टू डे बेसिस वी आर एब्जॉर्बिंग सो मच इन्फॉर्मेशन। हज़ारों लाखों इन्फॉर्मेशन हम डेली लेवल पे गैदर कर रहे हैं। बराबर है। हाउ डज़ योर ब्रेन नो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रखना है? इट डज़ सो बेस्ड ऑन योर इमोशंस, Okay. व्हिच मीन्स कल आपने लंच में क्या खाया था आप शायद भूल गए होगे, बट आप पहले डेट पे लंच पे क्या खाया था आपको याद होगा। 15 साल पुरानी बात, लंच डेट पे क्या खाया था वर्सेस कल की बात, आपको 15 साल पुरानी बात याद है। व्हाई? बिकॉज दैट मेमोरी हैड अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस कनेक्टेड टू इट। Okay. कल वाला क्या था, ठीक है नॉर्मल खा लिया था, डबल चावल दाल चावल। दाल चावल, हाँ। तो इवेंचुअली नो इमोशन कनेक्टेड टू इट। सो व्हाट्स द पॉइंट अबाउट इट कि दिमाग क्या कहता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन हम रोज गैदर कर रहे हैं, हमें डिफाइन कैसे कर रहा है दिमाग उसको कि जिस मेमोरी के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्टेड है दैट बिकम्स अ डोमिनेंट मेमोरी, Okay. और जिस मेमोरी के साथ एक वीकर इमोशन कनेक्टेड है दैट बिकम्स अ वीकर मेमोरी एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट इवेंचुअली गोइंग अहेड। Okay. नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि दोस stronger memory and stronger emotions stay within us because they act as a guiding force to tell you how to react in the present moment, Okay. which means अगर आज मैं आपके सामने एक 10 साल पुराना कोई सॉन्ग प्ले करूं, लेट्स से किसी कोई मिल गया मूवी का, तो आपको उस गाने को सुनकर कुछ ना कुछ मेमोरी याद आएगा कि मैं उस वक्त 7th क्लास में था और गर्मी की छुट्टी चल रही थी एंड मेरे दोस्त आए हुए थे खेलने के लिए। उस वक्त का एक मेमोरी याद आ गया आपको सडनली स्प्रिंकल करके। क्यों याद आया? बिकॉज उस मूवी के साथ, उस मूवी में जब वो गाना चल रहा था और बहुत पॉपुलर ही चल रहा था, आपकी लाइफ में ये चल रहा था एंड दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्टेड विद योर ब्रेन, क्योंकि यू आर एक्चुअली हैप्पी और सैड और एंग्शियस और स्ट्रेस्ड वॉट एवर यू आर। तो वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एंकर दैट इज अ सॉन्ग, एंड नाउ you recall that anchor and that memory again. Same thing happens, आप परफ्यूम स्मेल करते हो काफ़ी बार, you go to a party, you smell a very familiar perfume, आपको फिर से पुराने कभी पार्टी का याद आ जाएगा कि हाँ ये परफ्यूम मैंने 6 साल पहले इस पार्टी में स्मेल करा था। सेम लॉजिक अप्लाइज देयर एज वेल, दैट परफ्यूम और द सॉन्ग प्लेज एज एन एंकर। तो ये चीज़ बहुत बड़ा रोल होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कुछ मेमोरी के साथ कुछ इमोशन कनेक्टेड हो गया, सो उसका रोल इतना डोमिनेंटली इम्पैक्ट कर रहा है एंड ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस सेंस में कि दिमाग उनको कॉन्स्टेंटली एज एन एंकर यूज कर रहा है टू टेल मी कि हाउ शुड आई फील टुडे, विच मीन्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि ग्लास अगर ये टूटता है तो मुझे क्या फील करना है आज इस पॉइंट पे, गुस्सा या सैड विल डिपेंड अपॉन कि मैंने पहले कैसा फील किया था। बचपन में ग्लास टूटा था एंड माय फादर गॉट रियली एंग्री, तो आपको आपका दिमाग बोलेगा दिस इज व्हाट हैड हैपेंड बिफोर, दिस इज हाउ यू रिएक्ट, आप रिएक्ट करोगे भी गुस्से के साथ। आपके साथ था कि ग्लास टूटा, किसी ने बोल दिया कि यार इससे बहुत अपशगुन होता है, तो आपका दिमाग बोला सैड फील करना है, यू स्टार्टेड फील सैड। सो कैन आई ट्राई टू चेंज, लाइक रीवायर कर सकती हूँ मैं वो मेमोरी को? 100% you can do that, you can do that by changing the narrative around that memory, but it's hard work Okay. because you get deeper around those memory, work around that memory, काम करो, discuss करो, work करो, change करो narrative को। It takes a lot of time and energy, but it is definitely very very powerful technique to uh, work on the underlying issues, and especially for a lot of traumatic patients ये process use किया जाता है बिकॉज जो लोग बहुत ही strong, हम तो यहाँ पर बेसिक मेमोरीज की बात कर रहे हैं ना, जो लोग बहुत स्ट्रॉन्गर ट्रॉमास के थ्रू गुजर चुके हैं, आप नोटिस करो कि उनके ट्रॉमास इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी कर रहे होंगे, तो उनकी लाइफ कितनी इम्पैक्ट होती होगी उन ट्रॉमा से। तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़, एंड पीपल डू, बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट वर्क करते हैं जहाँ पे यू एक्चुअली वर्क ऑन दैट इंटरनल मेमोरी सिस्टम एंड वर्क अराउंड दैट। So you kind of rewire the entire memory. राइट, इट इज़ पेनफुल एट फर्स्ट बिकॉज यू रीविजिट दोज मेमोरीज। हम अगर यहाँ तो अच्छे मेमोरीज की बात कर रहे हैं, व्हाट इफ द मेमोरी इज वेरी 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 पेनफुल, Yeah. एंड व्हेन यू रीविजिट दोज मेमोरीज सब कुछ फिर से बर्डन आपके सामने आ गया। इट्स वेरी पेनफुल एट फर्स्ट, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक प्रोफेशनल के साथ वो काम करो, खुद से ना करो, क्योंकि खुद से आप कर भी लिया आपने काम, लेकिन आप उस इमोशंस के बर्डन में इतने ज़्यादा बह गए कि आप खुद को वापस नहीं ला पा रहे हो फिर से, राइट। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रोफेशनल के साथ काम करो
आइडेंटिफाई करो, काम करो उस चीज़ के ऊपर, कैसे उसको रिवायर करना है, नैरेटिव चेंज करना है एंड फाइंड अ वे टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग बेटर। सो काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है दैट आपने जो बोला दैट यू नीड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस टू रिलीज दैट ट्रॉमा समवेयर और द अदर. लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स इफ यू गो टू सी दे हैव मतलब बहुत दुखी कहानी होती है तभी जाके वो एक्सप्रेशन वो लिमिट मतलब दे कैन एक्चुअली एक्सप्रेस इट एट दैट लेवल. लाइक रॉकस्टार मूवी में वो बोलता है कि जाओ अपना दिल तोड़ के आओ तब वो गाना निकलेगा. ऐसा क्यों? एक्सप्रेशन ज़रूरत कब पड़ती है? जब कुछ एक्सप्रेस करने को हो। जितना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन करने की नीड, उतना क्रिएटिवली कुछ आर्ट निकल कर आएगा। सो आर यू ट्राइंग टू से कि थोड़ा दुख चाहिए लाइफ में टू बिकम मोर क्रिएटिव? दुःख, दर्द, यू नीड दुःख, दर्द टू बी अ गुड आर्टिस्ट। या एक्चुअली अगर बट सीरियसली स्पीकिंग द होल पॉइंट अबाउट इट कि हम जब अगर आर्टिस्ट को देखें, एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, एक दुनिया को एक अलग देखने का नज़रिया, अलग तरीके से देखने का नज़रिया कैसे आता है? जब आप हट के देख सको दुनिया को, और दुनिया को हट के तभी देख पाओगे जब आप समझ पाओगे कि ये जो मेरी एक्सप्रेशन है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, उसको मैं कैसे गाइड करूँ। नाउ देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट। जैसे ट्रॉमा की हम बात कर रहे थे कि ट्रॉमा किसी को है, समवन हैज़ बीन सम ट्रॉमास बिग और स्मॉल और व्हाटएवर दैट इज, इट इज शेपिंग देम टू बी अ पर्सन। कुछ न कहीं आइडेंटिटी में इम्पैक्ट कर रहा है उस पर्सन को। अब हम उस ट्रॉमा को लेकर वी कैन फील बैड अबाउट इट एंड सैड अबाउट इट, विच इज़ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इट, एवरीवन विल डू सेम। और या फिर हम उसको समझना चालू करके एक्सप्रेस करना चालू करें इन सर्टेन वर्ड्स। जैसे बात करते हैं ना कि पेंटिंग एज वेल, राइटिंग एज वेल, और एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस एट एनी ट्रॉमा लेवल, राइट? तभी वो सबसे सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म कहा जाता है आर्ट के एक्सप्रेस करने का। तो अगर आप उस ट्रॉमा को एक तरीके से शेप अप करो, एक्सप्रेशन दो, थ्रू योर म्यूजिक, थ्रू योर आर्ट, थ्रू योर पेंटिंग्स, थ्रू योर राइटिंग्स, it can be very beautiful because then you're giving a very genuine and a very fresh perspective to that trauma. ओके. And वो क्या करेगा, एक बहुत ही रॉ तरीके से निकल कर आएगा बाहर। जब रॉ इमोशनल चीज़ें आएंगी तो इमोशंस कनेक्ट होगा लोगों से। अगर मैं यहाँ पर एक बहुत ही सॉर्टेड लाइफ के बाद एक बुक लिखता हूँ अबाउट ह्यूमन लाइफ और समथिंग लाइक दैट, जिसमें इमोशंस होंगी नहीं, बिकॉज इमोशन निकल ही नहीं रहा है मेरे बॉडी के अंदर से, मैं फैक्ट दिख रहा हूँ, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस फैक्ट के साथ। पीपल डू नॉट कनेक्ट विद फैक्ट्स, पीपल कनेक्ट विद इमोशंस। So for people to connect with emotions, you need to express your emotions. For you to express your emotions, there has to be something that drives you to express your emotions. Yeah, you need to go through it Go through it. to actually talk about it somewhere or the Absolutely, other. absolutely. तो वो चीज़ है कि some people go into that depth to talk about it and feel those emotions and then use that to create something out of it. Some people do not. Trauma तो सबको कुछ ना कुछ लेवल पे है ही, major, minor, whatever. लेकिन हाँ, कुछ लोग उसको प्रॉपर्ली अगर उसको इस चैनल को तरफ यूज़ करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म में निकल कर आता है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, कि यू कैन ऑल्सो शेप दैट थिंग दैट यू हैव बीन थ्रू टू क्रिएट समथिंग रियली ब्यूटीफुल फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर योरसेल्फ एज वेल, एंड ऑल्सो बी अवेयर इन द प्रोसेस। सो कहीं पे ऐसा कुछ लिंक है क्या ब्रेन में सैडनेस और क्रिएटिविटी का को लेके? एक्सप्रेशन का है, एक्सप्रेशन का तो ज़रूर है ना, कि जितना पाइल्ड अप है, ये जब हम गुस्सा हो रहे, लाइक वी टॉक्ड अबाउट शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर एज वेल, वो क्या है, वो भी तो एक्सप्रेशन ही तो है। दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, कि निकल रहा है, वो भरा पड़ा चीज़ निकल रहा है एक फॉर्म से, गुस्से के फॉर्म में निकल रहा है। अब हम उसको राइटिंग के फॉर्म में निकाल रहे हैं। हाउ इज इट एनी डिफरेंट? इट्स द सेम थिंग। फॉर द ब्रेन इट्स एन आउटलेट, यू आर जस्ट यूजिंग अ पॉजिटिव आउटलेट। या सेम जो बोलते हैं ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं आईएएस बनूंगा, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। करके दिखाऊंगा. दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। अब मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बॉडी बनाऊंगा, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। हाउ वी यूज दैट एक्सप्रेशन इन अ पॉजिटिव वे इज व्हाट डिफाइंस एज अ पर्सन। इफ यू डू नॉट इट एज अ पॉजिटिव वे, अगर उसको पॉजिटिवली हम यूज ना करें तो फिर हमें पर्सनैलिटी चेंज करना चालू करता है। Like you get into substance abuse, alcohol abuse, or something like that. You get into a negative coping mechanisms as well. So I think understanding and observing कि हम उसको positively healthy coping mechanisms में कैसे implement करें, that can reshape up your life. ओके. और ऐसे कोई हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म जो आप बता सकते हो इफ पीपल आर गोइंग थ्रू समथिंग दैट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, Right. काफी कुछ हो रहा है तो क्या कर सकते हैं लोग टू सॉर्ट ऑफ कोप विद इट इन अ हेल्दी वे? There are various ways. Like going to the gym is a good coping mechanism. Walking is a good coping mechanism. Writing things down is a good coping mechanism. Meditation can be a good coping mechanism until and unless you're not very heavily dealing with those emotions. ओके. काफ़ी बार हम कह देते हैं मेडिटेशन इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ नॉट समहाउ। मेडिटेशन कैन एक्चुअली go really horribly wrong for you if you're stuck very deeply in the trauma, because then it will kind of put you in a very ruminating spot.
आप ऑलरेडी डील नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशन से, अपने ट्रॉमा से, एंड आपको बोला जाए बैठो उसके साथ, सो इट विल डू द ऑपोजिट पार्ट, जो आपको करना था वो नहीं कर रहा है वो। बट हाँ, इफ यू आर इन अ ठीक-ठाक इमोशनल स्टेट, देन meditation can be a beautiful thing. So meditation can be one of the healthier coping mechanisms as well. Talking to people can be a good coping mechanism. Writing, painting, any sort of expression Yeah. जहाँ पे अपनी एनर्जी को आप यूज कर रहे हो। Yeah, I was just going to tell you that ki when I was going through a low in my life, for me any kind of action in a positive way, maybe it could be dance, Yeah. it could be cooking, it could be somewhere where I think that kabhi if I don't have words to put it up, बहुत गुस्सा आ रहा है, I'll start cleaning my room. हाँ 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 So I think जब वो I put out that energy, that outlet somewhere, I automatically feel better. हाँ Like so, कुछ तो ऐसे अंदर something gets resolved. हाँ And I think कहीं ना कहीं emotions also have outbursts of energies. वो outlet कहीं देना, it really helps, हाँ helps बिल, somewhere or the other. बिल्कुल बिल्कुल। बट इसमें भी एक बड़ा ट्रिकी पार्ट आता है कि आउटलेट देना वन गुड थिंग, स्टिल प्रोसेसिंग दैट थिंग एंड द इमोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So दोनों बहुत different चीजें हैं. हाँ, मतलब आउटलेट के थ्रू भी काफ़ी बार प्रोसेस कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू गोइंग फॉर अ वॉक, मे बी शायद आप वॉक करते-करते ही अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीख रहे हो, बट काफ़ी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इट्स ऑल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप आउटलेट तो निकाल लिया आपने, बट जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है उसको प्रोसेस भी करो। अनलेस एंड अंटिल इट चेंजेस योर पर्सनैलिटी देन। Yeah. But otherwise, for example, I've been through a breakup and I'm not processing what I felt. But I'm going out to the gym, I'm working out, I'm studying really hard for the IAS examination, I'm cracking it. बन गया IAS, but hurt and the pain is still inside. Yeah. अब मैं रिवेंज कर ढूंढ रहा हूँ। तो मतलब अनप्रोसेस्ड इमोशन है ना, अनप्रोसेस्ड Yes. पेन है मेरे अंदर Yes. जो मुझे इस तरीके से ड्राइव कर रहा है। इट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस दैट पेन एंड इमोशन एज वेल। तो आउटलेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, बाईपासिंग प्रोसेसिंग, बट साथ ही साथ डील विथ व्हाट यू हैव बीन फीलिंग एज वेल, Got ताकि आप it. उसको एक बेटर तरीके से नैरेटिव दे सको चेंज करने का। Coming to the next part, there's a lot of noise about emotional availability. If you see the internet, suddenly, since the last, I think 5-6 years, or maybe even more latest 2-3 years, जो कभी किसी को पता ही नहीं था कि there is a term called being emotionally available. What is actually being emotionally available? I think what it primarily means, I think from the space of the internet, is that the person holds space for you to be emotional and emotionally expressive in a particular way. Okay. कि वो आपके इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी इमोशंस को भी एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है इन अ हेल्दियर मैनर। जो बोलते लोग इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की बात करते, दे आर काइंड ऑफ शट ऑफ फ्रॉम देयर इमोशंस, Okay. सो दे डोंट अलाउ यू टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड दे डोंट अलाउ एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस ईदर। तो वो इमोशनली अनअवेलेबल हो गए। जो इमोशनली अवेलेबल लोग होंगे वो आपके इमोशंस को भी स्पेस देंगे, खुद के इमोशंस को भी स्पेस देंगे एक्सप्रेस करने का। बट आई थिंक इट कैन स्टिल बी अ वेरी ट्रिकी थिंग टू प्ले विथ, बिकॉज देयर आर वेरियस वेज दैट पर्सन एक्सप्रेसेस देयर इमोशंस। वी कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग कि मुझे बात करना पसंद है, तो दिस इज द ओनली वे टू एक्सप्रेस द इमोशंस। समवन कैन यूज इट इन अ डिफरेंट वे टुगेदर एज वेल, टिल द पॉइंट इट इज हेल्पिंग यू इन अ रिलेशनशिप, इट्स गुड। If it is not helping in the relationship, then it's a problem. Because काफ़ी बारी आती है ना बात कि from women a lot of times कि the men I'm dating, they do not share anything about themselves, Yeah. right? And which is a truth. ये सच बात है कि बहुत लोग नहीं, majority of the men do not share about what they're feeling. But वो space भी तो matter करता है ना। आपने ये label तो कर दिया कि the person is emotionally unavailable, but by that logic every man will be emotionally unavailable. So we need to understand this thing कि आप पहली बात उससे कितना space दे रहे हो express करने का। सेकेंडली उसके एक्सप्रेशंस कैसे है। थर्डली अगर एक्सप्रेशन नहीं है आपके तरीके से, तो क्या आपके रिलेशनशिप के डायनामिक को इम्पैक्ट कर रहा है, देन टेक एन एक्शन अबाउट इट कि Okay. इट्स अ प्रॉब्लम और नॉट। अगर वो एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, आपने क्या समय दिया उसे प्रॉपर तरीके से, ट्रस्ट का, स्पेस का, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मेन हैव डू नॉट गॉट द स्पेस टू एक्चुअली एक्सप्रेस देयर इमोशंस। जस्ट बिकॉज यू हैव कम इनटू द लाइफ डजंट मीन दैट दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस ऑटोमेटिकली। व्हाट इफ दे हैव बीन थ्रू वेरियस स्पेसेस इन देयर लाइफ जहाँ पे उनको स्पेस था ही नहीं एक्सप्रेस करने का। सडनली आप बोलो कि नहीं आप खुल के बातें करो, नहीं पॉसिबल है उसके लिए। तो पहले आप स्पेस दो और ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका दो। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप दोगे स्पेस और ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका, दे विल टॉक आउट, नॉट इन एग्जैक्ट वे दैट यू टॉक आउट, हाँ. राइट? बिकॉज नहीं खुल पाएंगे इतना मे बी, बट देखोगे आप चेंजेस एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सेकेंड थिंग कि वो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, मे बी देयर एक्सप्रेशंस माइट नॉट बी थ्रू वर्ड्स बट थ्रू जेस्चर्स, through things that you want, that the things that they do for you, physical touch, physical affection as well, many a times, not exactly intimacy, physical affection as well. Yeah. And third part about कि उनके लाइफ में क्या ग्रोथ आ रहा है उस प्रोसेस में, कि वो एक्सप्रेशन आपके नेगेटिवली जा रहा है, पॉजिटिवली जा रहा है,
विच मीन्स कि आप बातें कर रहे हो एंड वो आपको जेस्चर्स दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो इट्स स्टिल वर्किंग आउट ब्यूटीफुल फॉर यू। या यस, एक्सप्रेशन करने से चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, बट मे बी वो टाइम के साथ हो जाएगा, राइट? तो हम उसको लेबल नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू आर डूइंग अदर थिंग्स रादर देन टॉकिंग, देन इट्स रॉन्ग। इट कैन नॉट बी रॉन्ग देन। तो आपको स्पेस टाइम देना बहुत जरूरी है टू बी एबल टू जज इफ दैट इज एक्चुअली बीइंग इमोशनली अवेलेबल और नॉट। बिकॉज अगर हम एक्चुअली कोर डेफिनेशन पे जाएंगे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उस पर्सन के पास एबिलिटी ही नहीं इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, जो कि ऐसा नहीं होता है। सब कोई किसी ना किसी तरीके से इमोशंस एक्सप्रेस करता है। यू जस्ट हैव टू चूज इफ दैट अलाइंस विथ यू और नॉट। या दैट मीन्स इफ आई एम, मुझे अगर जब इमोशनल फील होता है एंड सैड फील होता है, एंग्री फील होता है, गो आउट एंड ड्रिंक एंड इट डज नॉट अलाइन विथ यू, राइट? देन दैट्स अ प्रॉब्लम, देन ओके वी डू नॉट मैच अप। सो देयर इज नथिंग लाइक बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल। आई थिंक इट्स, मतलब हम उसको इतना रिजिडली नहीं डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एवरीबडी हैज एन आउटलेट। करते। यस, इट्स जस्ट दैट मे बी यू टू पीपल are very different in showing their emotions yes, somewhere or the if that other. aligns with you, good enough. Okay. Does not align with you, talk about it and maybe part ways. Hmm. But वो proper label कर देना is not the solution, because somehow it kind of puts you in a loop, because आप सब जगह वही देखोगे फिर कि ये इमोशनली अनअवेलेबल है, ये इमोशनली अनअवेलेबल है, ये इमोशनली अनअवेलेबल है। तो आप तो कुछ देख ही नहीं पा रहे, ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज ये हो रहा है आज के डेट पे। Yeah. एवरी वुमन आई मीट विल से द सेम थिंग, Yeah. दैट एवरी मैन इज इमोशनली अनअवेलेबल। तो कैसे ये जो आपने बोला कि दो लोग अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो हाउ कैन दे एक्चुअली आइडेंटिफाई द अदर पर्सन्स इमोशनल क्वोशंट? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक इस पे इम्पैक्ट होता है हाउ दे आर एबल टू डील विद देयर इमोशंस। ओके. एंड जस्ट लाइक एग्जैक्टली मेंशन कि अगर मेरा आउटलेट of dealing with my emotions is going out and drinking every day, then probably my emotional quotient is not that high, because I need a very high kick to get out of my emotion, to bypass my emotions. If my way of dealing with my emotions is just being stuck on my mobile phone all day long, maybe I do not have a very high emotional quotient. But if I take my space, take my time and handle it, talk about it, write it down or deal it in my own particular way, not necessarily मैं बात ही कर रहा हूँ, शायद मैं अंदर ही रिजॉल्व कर पा रहा हूँ, then maybe yes. सबसे सेकंड बेस्ट रीजन दैट उनके इम्पल्सिव रिएक्शंस बहुत मिनिमम होंगे। अ पर्सन ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस विल हैव वेरी लो इम्पल्सिविटी, विच मीन्स कि आई विल नॉट ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि कैसे मुझे छुट्टी मिले, छुटकारा मिले किसी चीज़ को लेकर, राइट? कि चलो ये करते हैं, आज तो ये कर लेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो इम्पल्सिविटी का क्वेश्चन बहुत कम होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इम्पल्सिविटी की तरफ जा रहे हो, उतना ही आप कहीं ना कहीं स्केप ढूंढ रहे हो अपने इमोशन से भागने का, तो वो चीज़ें कम होंगी, राइट? और तीसरी चीज़, दे विल होल्ड स्पेस फॉर यू एज वेल। अगर एक इंसान इमोशनली अवेलेबल या इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो वो इंसान आपकी इमोशंस को समझने में अप्रिशिएट कर पाएगा और समझने में कैपेबल होगा। इफ आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, देन व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट विल साउंड रबिश टू मी, कि क्या बोल, व्हाट व्हाट आर यू सेइंग, आई मीन डजंट मेक एनी सेंस टू मी, बिकॉज जस्ट बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी डजंट मीन इट इज नॉट वायबल फॉर यू। जस्ट बिकॉज यू फीलिंग समथिंग डिफरेंट देन मी, इट डजंट मेक रॉन्ग, गलत नहीं हो गया वो ना, इट स्टिल इज राइट। तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन अंडरस्टैंड्स कि जस्ट बिकॉज मेरे इमोशंस ये 5 है, तो आपके भी वो 5 होंगे, इट्स नॉट राइट। आपके 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, और तरीके भी अलग हो सकते हैं, बट आई होल्ड स्पेस फॉर यू। आई थिंक दोज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay. Do you think that after you became an emotional intelligence coach, you have become more emotionally 100%। available for people around हाँ, you? बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आई फेल्ट इन माई सेल्फ एज वेल। एंड ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ पे sometimes what really happens is that when I'm talking to people, when I'm talking about certain events, when I'm reading about it, some part clicks. This is me as well. कि ये तो मैं भी हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, एंड वहाँ से somewhere I'm resolving my own issues through those people. Okay. कि ये पार्ट क्लिक कर रहा है somewhere, right? कि this is what it is. Maybe intensity उतनी strong ना हो, but I am handling it. I'm kind of unweaving myself through that particular process. तो वो भी एक बड़ी चीज़ आती है कि इट्स हैज़ बीन ब्यूटीफुल प्रोसेस, बिकॉज द मोर यू गेट डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेन, अबाउट योर पैटर्न्स, अबाउट योर बिलीव्स, अबाउट हाउ टू हैंडल इट बेटर, इट वेरी प्योरली इम्पैक्ट्स हाउ यू डील विथ योरसेल्फ, योर रिलेशनशिप्स, योर पर्सनल लाइफ एंड एवरीथिंग अराउंड इट। अभी जो listeners है, everybody today wants to become more emotionally available for their partners because that's how relationships also go the longer way. क्योंकि अगर आप एक दूसरे के इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आई थिंक staying together also becomes difficult. So, how can I or how can the listener, whoever's watching this podcast, how can they start working on their emotional availability? I think first understand what exactly are the emotions you feel on a day-to-day basis, अच्छा. and that starts with introspection. Okay. Maybe
डिग डीपर इनटू दैट कि आप नॉर्मल लेवल पे क्या फील कर रहे हो, क्या कैसा था मेरा दिन आज। सो बेसिकली डेली सेल्फ चेक इन काइंड ऑफ थिंग Okay. कि मेरा दिन आज ऐसा था, दीज आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड विद मी टुडे, दीज आर द बैड थिंग्स दैट हैपेंड विद मी टुडे, एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट मोर अबाउट दैट कि अच्छा क्यों था, बुरा क्यों था, क्या चीज़ें इतना इम्पैक्ट करा, क्या चीज़ें की इतना इम्पैक्ट रहा, क्या चीज़ें अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करा, क्या चीज़ों का बुरे तरीके से इम्पैक्ट रहा। सो वंस यू स्टार्ट डिगिंग डीपर एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एंड वीव योर पैटर्न्स। ये हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न ये था, इसका पर्पस ये था, एंड दैट इज़ हाउ यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेरी मच बेटर। Okay. Once that happens, automatically your way of handling those emotions will automatically change, and that shows up in your relationships as well. That is one thing. Second thing, जो बहुत interesting point है, is that being a good listener actually helps a lot. Which means कि अगर आप if you hold space for other people, even though you're not understanding what they're saying at first, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा वो इंसान क्या कह रहा है, but just hold space for them to talk and try not to interrupt while they're talking. तो आपको लिए स्टार्टिंग में द मंकी माइंड चैटर विल काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली से कि नहीं नहीं मुझे बताना है कुछ, मेरा ये इमोशंस था, मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे भी शेयर करना है वो चीज़। लेकिन जब वो चैटर को आप शांत करना चालू करोगे ना, बाय पुशिंग योरसेल्फ कॉन्शियसली, नहीं मुझे सुनना है, लेट मी हियर व्हाट द पर्सन हैज टू से, देन समवेयर यू होल्डिंग स्पेस फॉर देम एज वेल, एंड ऑल्सो इट अलाउज यू टू सी वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बोले जा रहे हो और सुन नहीं रहे हो, सुनते वक्त भी आप अपने दिमाग में आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो समय तो सिर्फ आप अपने दिमाग में ही जी रहे हो ना। या बट दैट्स सच अ ह्यूमन टेंडेंसी। अगर कोई मुझे आके बोलता है कि मुझे ये बात बुरा लगा, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग I myself also, I will start thinking कि नहीं यार, बट दिस इज नॉट व्हाट आई इंटेंडेड टू डू, और दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, मेरा इंटेंशन था ही नहीं। सो 100% I think we have our chatter constantly कि we want to give our opinion or what we went through before even listening to the other person. यस हाँ, आंसर्स हम रेडी रखते हैं पहले से कि रिस्पॉन्ड करना है हमें फटाफट, एंड वो भी समवेयर आप नोटिस करोगे ये भी इमोशंस के कारण ही आ रहा है वो एक्टिविटी। लाइक आई मेंशन दैट इनिशियली कि शेयर आ चुका है तो रिएक्ट करना पड़ेगा। सेम थिंग, समवन इज कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई माय नीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। व्हाई सो? बिकॉज आई नीड टू बी रिलेवेंट इन दिस प्रोसेस, इन दिस कॉन्वर्सेशन। हाउ डू आई बी रिलेवेंट? बिकॉज इफ आई डू नॉट be relevant in the conversation, then I feel that I'll miss out on something. What will I miss out on? Maybe the person will think that I do not have interesting antidote to share. So I'm constantly in the preparation to make myself feel good in the conversation, to present myself in a decent way in the conversation. That comes from my own confidence issues. उस चक्कर में वो चैटर चल रहा है कॉन्स्टेंटली, आई नीड टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे। एक पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न काफ़ी बार ये होता है कि द पर्सन इज सेइंग समथिंग दैट ब्लॉक्स माई आइडेंटिटी। You say something जो बिल्कुल opposite of what I feel about the world, that poses a threat to me. You see the world in a different way and I somehow see it as a threat. ये तो गलत है, ये तरीका गलत है तुम्हारी दुनिया देखने का, this is wrong. Again a chatter starts कि no ये बोलना पड़ेगा मुझे कि तुम गलत सोच रहे हो दुनिया के बारे में, this is not how the world works, because if I don't, it will somehow start making me question my own identity. तो दोनों केसेस में चैटर चलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होगा कि you need to stop consciously एंड अलाउ योरसेल्फ टू लिसन। दो फायदे होंगे। पहला फायदा, अगर ये आपको क्वेश्चन कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को, एटलीस्ट यू गेट अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट ड्रिवन बाय योर फिलॉसफीज ईदर, राइट। दुनिया में हर इंसान फिलॉसफी अपना जनरेट करके जी रहा है एंड दे आर इक्वली हैप्पी एंड मे बी मोर हैप्पियर देन यू नेवर नो अबाउट दैट। तो हम ये अज्यूम करते हैं ना कि जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ पर्टिकुलर रिलीजन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, दिस इज द परफेक्ट थिंग टू गो अबाउट इट। मे बी अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रिलीजन इज हैप्पियर देन यू, दे आर लिविंग लाइफ मच बेटर देन यू। तो आपकी फिलॉसफी तो आप तक ही सिर्फ लिमिटेड है। डू नॉट मेक इट द एंटायर आइडेंटिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप देखोगे, सुनोगे, तो नेचुरली आपका एक स्पेस खुलेगा दुनिया को देखने का, एंड दैट इज़ व्हेयर ट्रैवलिंग हेल्प्स अ लॉट। आप नोटिस करते हो जब ट्रैवल करते हैं हम, तो क्या होता है, हम बहुत कंपोज्ड हो जाते हैं दुनिया के बारे में, फिलॉसफीज़ के बारे में, आइडियोलॉजीज़ के बारे में, बिकॉज़ आपको दिख रहा है ना कि खाने का तरीका अलग, बात करने का अलग तरीका अलग, दुनिया देखने का तरीका अलग, जीने का तरीका अलग। Yeah, you become more flexible by Flexible. your Yeah, thoughts. absolutely. Yeah, Tolerant as well about Yeah. people, about ideologies. yeah. तो ये स्पेस क्या दे रहा है आपको? एक्सप्लोर करने का दुनिया को विदाउट एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। दैट इज़ वन थिंग दैट हेल्प्स। बट हाँ, चैटर को कम करने के लिए ये पहला पार्ट हेल्प करेगा। एंड दूसरी चीज़ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि जब वो चैटर आ रहा है, कॉन्शियसली स्टॉप योरसेल्फ कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, ताकि हम सुनना स्टार्ट करें दूसरे इंसान को, उनके इमोशंस को भी समझना स्टार्ट करें, क्योंकि दिस इज व्हाट द पर्सन इज सेइंग एंड इवन इफ इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, ये बंदा अगर कुछ फील कर रहा है तो उसका कुछ तो पर्पस होगा ना। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी बैकग्राउंड कनेक्टेड टू मी। इफ यू आर फीलिंग समथिंग
about a particular situation, your brain is pushing you to think in a particular way because of a purpose. वो रैंडमली तो पुश नहीं करेगा ना कि मुझे सैड फील करना है इस चीज़ को Yeah. लेकर रैंडमली। कुछ तो आपके लिए तो सेंसिबल चीज़ है तभी आपके इमोशंस आ रहा है। Yes. तो मेरे नॉन सेंसिबल रिएक्शन से वो चेंज नहीं होने वाला। So don't disregard the Yes. कि वो जो बात कर रहा है वो एकदम नॉनसेंसिकल है. राइट। Yeah. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि जब हम स्पेस देंगे गुड लिसनर बनने का खुद को, तो रिलेशनशिप्स पहले बेटर होंगे बिकॉज़ अदर पर्सन विल आल्सो फील कंफर्टेड बाय यू Yeah. एंड यू विल आल्सो बिकम अ बेटर पर्सन इन द प्रोसेस। तो दिस इज़ विन-विन थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। Okay. आपके रिलेशनशिप के लिए और खुद के लिए भी। Okay. दिस इज़ व्हाट ऑफन हेल्प्स। And how can so like if you have seen Friends, उसमें you've seen Chandler, like his parents went through a divorce, and then when he had his own way of dealing with like he would deal problems in a very sense of humor. मतलब वो हंस के problems को face करता था. कभी भी कोई problem आता था तो उसका एक ही solution था कि sense of humor use करके he would try to deal with it. And also when he was in this relationships, like he was trying to find uh, whoever's coming close to him, he would sort of run away from it, from commitment. Until like I remember like Monica telling him that, you know, having a fight is actually normal and you can still stay in a relationship. Yeah. So he was an emotionally unavailable person. Like he didn't understand his own emotions. So how can somebody deal with an emotionally unavailable partner? अगेन वही बात जब हम लेबल कर देंगे ना इमोशनली अनअवेलेबल, हाँ तो पहले शट डाउन कर देंगे उसको हाँ तो कि ठीक. होना ही नहीं कुछ। हाँ. तो पहले अंडरस्टैंड दिस इज अ पर्सन हु हैज डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस और हर इमोशंस। Yeah. अब हमें क्या देखना है, एड्रेस करना है कि हमारे लिए कितना वो वायबल है। अब ये हम दूसरा पर्सन अगर इमोशनली अनअवेलेबल है या केपेबल नहीं है इमोशंस हैंडल करने के लिए, तो हम उसको अपनी पर्सनल बैटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ना कि मेरा गोल है उसको सही करना। दैट कैन बी अ लाइफ लॉन्ग बैटल। अब क्या पता 20 साल लग जाए उसको सही करने में, बराबर है. तो मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई उस चक्कर में। मैं तो मतलब स्ट्रगल ही करते रह गए हम तो, कुछ हमें क्या मिला इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे? नथिंग। तो वी कैन नॉट टेक, तो वी हैव टू असेस दिस पर्सनैलिटी थिंग एज़ वेल कि ट्राई इट आउट, एक्सपेरिमेंट इट आउट, सी हाउ इट इज़ गोइंग। कुछ समय दो, कुछ मंथ्स दो। Observe where are you going, where are you headed? Is a person actually putting in equal efforts as well for the relationship and to make things better for you? Then we can go ahead with that. But हाँ, आपको दिख जाए 2-4 महीने में कि नहीं, it's a one sided affair. दूसरा पर्सन ट्राई ही नहीं कर रहा है कुछ सेंस पे, खुद में इम्प्रूवमेंट या आपके लिए भी कुछ करना, देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ वेरी अनवायबल ऑप्शन। तो आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि माई गोल इज़ टू मेक श्योर दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स बीइंग अवेलेबल, इमोशनली अवेलेबल। माई गोल इज़ टू सी हाउ मच आई कैन फिट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन लाइफ्स। वो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं एंड देन सी हम आगे बढ़ के कुछ कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो ठीक है, इट्स फाइन। वी डू नॉट हैव टू टेक इट पर्सनली। द पर्सन नॉट चेंजिंग इज नॉट अ क्वेश्चन ऑन मी। तो मैं काफ़ी बार लोग क्वेश्चन करते हैं खुद पे ना कि वो पर्सन चेंज नहीं कर पाया खुद को, शायद मुझ में कुछ कमी थी, अगर मैं इस तरीके से होता या होती तो शायद वो तो चेंज हो जाता। एंड देन वो क्वेश्चन हमें पैरालाइज कर देता है, तो हम और अटक जाते हैं उस इंसान के साथ कि मैं और अटक के देखती हूँ, क्या पता चेंज हो जाए। जब चेंज होगा ना वो इंसान, तो फाइनली मुझे अपना सेल्फ वर्थ बेटर होता हुआ दिखेगा, राइट? कि दिस पर्सन चेंज्ड बिकॉज ऑफ माय लव एंड माय अफेक्शन, दैट मीन्स आई वाज डूइंग समथिंग राइट एंड आई एम अ वर्दी पर्सन टू बी लव्ड। बट इट कैन बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी अगर उधर से कुछ एफर्ट नहीं आ रहा है तो। सेंस, ऑब्जर्व एंड अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लाइक आई मेंशन इनिशियली एज वेल कि रिलेशनशिप में आप किसी मैनुअल के थ्रू नहीं जा रहे हो अंदर। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अडैप्ट एंड इम्प्रोवाइज बेस्ड ऑन सीइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब रिलेशनशिप एंटर करके तो आँख नाक सब बंद कर लिया। अब लोग करते हैं, लोग ये करते हैं। द मोमेंट यू एंटर रिलेशनशिप वी क्लोज एवरीथिंग, ऑल आवर सेंसेस। अब बस सरेंडर का टाइम है। उस सरेंडरिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है कि हम बस अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओके व्हाटएवर यू डू इट्स फाइन, चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन उस प्रोसेस में ये हो रहा है कि समवेयर आपको बहुत लेट पता चल रहा है कि मेरी नीड्स मीट नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग सिचुएशन से एबिलिटी नहीं है। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे इनिशियल लेवल पे, देन यू कैन बाइसेक्ट और डाइसेक्ट इट इन द राइट पॉइंट ऑफ द टाइम। Yeah. मतलब earlier in the early stage of relationship only you will come to know that Yes, this yes. person is right for you or no. एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है बिफोर एक्चुअली डिगिंग कंप्लीटली इनटू दैट ब्लाइंड जोन। ब्लाइंड जोन के अपने फ़ायदे हैं, जब आप बिल्कुल अंधे हो जाओ, उसके फ़ायदे ये है कि यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड स्टिल द गाड़ी चल रही है ऑटो पायलट मोड पे। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एज वेल। आप टेस्ला में बैठे हुए हो, गाड़ी चल रही है मस्त, आप पीछे सो रहे हो, लेट रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बिकॉज़ यू हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन द कार। लेकिन वो स्पेस कब आएगा? बहुत टाइम के बाद आएगा। Yeah. हम पहले दिन कर देंगे वो स्पेस तो एक्सीडेंट होने वाला है फिर, राइट? तो गिव योरसेल्फ द टाइम कि इंडिया में टेस्ला को आने के बाद हम थोड़ा देर ऑब्जर्व करें
इंडियन इंडियन ट्रैफिक को वो मैनेज कर पाता है, नहीं कर पाता है। उसके बाद इसके बाद आई ट्रस्ट कि ठीक है, अभी पीछे बैठ सकते हैं। और अगर मुझे वो दिख रहा है मेरे रिलेशनशिप में कि दिस पार्टनर इज नॉट बीइंग अवेलेबल इमोशनली, नॉट दैट वो टर्म बट जैसे लोग बात करें कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, सो हाउ डू आई सॉर्ट ऑफ टॉक दिस आउट टू माई पार्टनर? शुड आई स्टार्ट लाइक एड्रेस दिस, और यू जस्ट ट्राई योर ओन वेज? लाइक एनी कोई टिप्स है कि अगर कोई देख रहा है कि ये सिचुएशन से डील कर रहे हैं? Majority of the times, giving them the space and using a positive reinforcement activities help. Generally क्या होता है ना कि those emotional unavailable expressions are met with strong reactions, and ये women के cases में बहुत ज़्यादा होता है. Like a woman is not expressing in a particular way, women often take it on themselves कि is it about me, and they tend to be aggressive about it in their words, in their verbs, in the language. तो समवेयर एक इंसान जो ऑलरेडी डरा हुआ है इमोशंस एक्सप्रेस करने में, आपके अग्रेशन से वो पास नहीं आ रहा आपके। आपको लग रहा है शायद आपके एक्सप्रेशन एंगर्स के थ्रू शायद वो एक समझ जाएगा कितना पेनफुल है मेरे लिए, and वो और पास आएगा, मेहनत करेगा। या बट वो डरा हुआ है, तभी तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आपके एंगर से वो डर कम नहीं हो रहा और डर बढ़ रहा है, तो वो और पीछे जा रहा है। तो विथ एवरी पासिंग डे द पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग मोर इमोशनली अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। तो समहाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर आपको स्पेस देना उस इंसान को ट्रस्ट डेवलप करने का और स्पेस डेवलप करने का, तो गिव देम अ हैंडी स्पेस ऑफ असर्टिव स्पेस कि ओके, let's be wherever we are, let's try to put in efforts for each other. You have me and you have all the time in the world to be yourself and express whenever you feel like it. सो दिस इज ऑल्सो वेयर हाउ फाइट्स कैन बी एक्चुअली यूज्ड इन अ बेटर वे, लाइक पॉजिटिवली आप बात कर लो। हाँ। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि इन कपल्स स्पेशली कि झगड़ा चालू होता है कि यार यू पुट द टॉवल ऑन द बेड, यू नो, एंड वो छोटी से झगड़े से वो दैट टॉवल से पीपल एंड अप सेइंग सच नेगेटिव एंड सच हर्टफुल थिंग्स टू ईच अदर. So how can, and especially as you said, women tend to like backlash, like बहुत, और they want to just speak out everything. एक तो pylon भी रहता है काफ़ी चीज़ों का, and you sort of have this outburst and you're saying everything. तो how can they actually change that method कि okay कुछ trigger हो रहा है तो हाँ, इसमें इसका 2 रोल है। पहला रोल कि पाइलॉन मत होने दो चीज़ों को। अगर आपको चीज़ें खराब लग रही है, इनिशियली एक्सप्रेस करो, एंड ये चीज़ समहाउ सोसाइटी ने भी वुमेन को सिखा दिया ना कि यू हैव टू बी अ बिट सबमिसिव इन रिलेशनशिप। स्पेशली इंडियन कंडीशन में ज़्यादा, बाकी जगह भी बहुत ज़्यादा नॉर्मली है कि वुमेन हैव बीन टोल्ड कि इन रिलेशनशिप यू हैव टू बी अ बिट सबमिसिव एंड बिट सॉफ्ट एंड बिट डिफेंसिव। तो इनिशियली दे स्टार्ट विद दैट प्लीजिंग नेचर वुमेन ऑफन कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्या ही बोलूँ इस छोटी सी बात पे, टॉवल के लिए क्या ही बोलूँ मैं आज, रहने दो, कोई बात नहीं, लेट हिम बी द वे ही इज़। अच्छा, ही इज़ नॉट क्लीनिंग आउट द किचन, क्या ही बोले, छोड़ रहे हैं, मैं कर लेती हूँ साफ़। अब ये एक्टिविटी क्या आप 6 महीने बाद टॉलरेट करोगे? प्रॉब्ली नॉट। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए डील ब्रेकर बनने वाली है, व्हाई नॉट एड्रेस इट टुडे? एंड जब आप पहले दिन इसको डील करोगे तो इट वोंट कम आउट एज़ हार्शली, इट विल कम आउट आफ्टर 6 मंथ्स। द फर्स्ट थिंग कि आज जब हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो इट इज़ अ वेरी इक्वल गेम। यहाँ पर नो वन इज़ सुपीरियर, नो वन इज़ इन्फीरियर। Both are working really hard, both are independent, both are earning as much as they can, and both are contributing to a relationship in the most beautiful way. तो आपकी नीड्स कहीं भी इन्फीरियर नहीं है किसी और के इस लेवल पे। हमने देखा अपने पेरेंट्स में शायद ऐसे ही, तो हमें लग रहा है कि यही होना चाहिए। तो पहली बात, टेक ओनरशिप ऑफ योर नीड्स एज वेल, दैट आई डिजर्व। अगर मुझे लग रहा है कि टॉवल यहाँ नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तो टॉक अबाउट इट एज असर्टिवली एज यू कैन। इफ यू कैन डू दैट, तो पहले दिन ही वो शायद रिजॉल्व हो जाएगा। मे बी शायद उसे चेंज करने में वक्त लगेगा, बिकॉज उससे आदत नहीं है वो चीज़ करने की, बिकॉज घर पे उनके मॉम कर लेते थे वो काम। बिकॉज आदत यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सन्स को ऐसे सिखाया नहीं गया है ना कि किचन का काम कैसे करना है, अपने घर में अपने लॉन्ड्री कैसे साफ करना है, या टॉवल कहाँ रखना है। आप फेंक दोगे, मॉम उठा के कहीं ना कहीं रख देंगी, काम कर देंगे। तो उनको एक थोड़ा वो अप्रोच दिया गया है, तो उनको लगता है यहाँ भी वही होने वाला है मेरे साथ। बट दैट्स द पॉइंट अबाउट इट कि गिव देम द टाइम, स्पेस, टॉक अबाउट इट कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू एज वेल, तो एड्रेस इट। सो बेसिकली इमोशनल नीड की बात हो गई यहाँ पे कि इमोशनल व्हाट की डू बात, यू नीड एग्जैक्टली इन दैट राइट। रिलेशनशिप. सो दैट इज अबाउट वुमेन। नो, सेकंड थिंग अबाउट मेन। मेन के केस में क्या होता है ना कि अ लॉट ऑफ टाइम्स मेन सी थिंग्स एज अ पर्सनल अटैक एज वेल, कि हाउ डेयर यू से थिंग्स टू मी इन दैट सेंस, कि हाउ आर यू कॉन्स्टेंटली निट पिकिंग ऑन मी, व्हाई यू कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ऐसे क्यों नहीं रखते, तुम वैसे नहीं रखते।
which somehow comes out like that in case of communication. But ये भी समझना जरूरी for men especially कि majority of the times when women are complaining, they're not complaining about you, they're complaining about the things which are not going right in the relationship. So they're not trying to change you, they're trying to change how things can get better in the relationship. Because ये बहुत important observation है that women are very relationship centric, men are society centric. तो मेन का रोल क्या है ना, मेन कभी भी सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस नहीं रहेंगे, मेन का रहेगा कि सबको इकट्ठे लेके कैसे हम सरवाइव करें, Yeah, that's so true. राइट? Yeah. वुमेन अगर रिलेशनशिप में है तो सिर्फ रिलेशनशिप का ही सोचेंगे, उनको सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ेगा कौन सोचे, कौन बोले, कौन देखे हमें इस तरीके से, तो दे विल बी अपफ्रंट अबाउट एवरीथिंग. लेकिन मेन को इस तरीके से इवॉल्व हुए हम बेसिकली, सो नथिंग रॉन्ग अबाउट ईदर ऑफ द अप्रोचेस. लेकिन वो पॉइंट है कि अगर वुमेन इस तरीके से बोले, सो दे नॉट रियली पॉइंटिंग इट आउट टू यू कि दे ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग. तो वहाँ पे मेन को समझना कि इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनल अटैक ऑन यू, मे बी they're trying to improve the relationship dynamics, and that is why it is coming out harshly. And for women to understand that, rather than putting it out harshly, try to identify your own needs and try to initiate that conversation as early as you can, so that it does not pile up and come out aggressively. ये कितना मतलब very nice point you said, because Indian traditional families, if you go to see, so I know so many families, and the major issue is like कि the dad or the male figure of the family is going to think about चाचा चाची, Yes. दादा दादी, and they are going to be like ये हमारे घर के ये है. And even if trust me, like the siblings are not good, मतलब उनके भाई भी अगर उनके साथ अच्छे नहीं है, बहन भी नहीं है, तो भी they will be good with them, and the wife will have an issue कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो भी आपको उनके साथ रिलेशन रखना है. And there is this conflict which I've seen कि बहुत- males are very family oriented, like पूरा society के बारे में सोच के, and females are only going to think of आपके साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है, but you still want to be the good person out there. Yes, 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 right. Yeah. हाँ, तो यही समझना कि बैलेंस जरूरी दोनों केसेस में. यू कैन नॉट बी जस्ट सोसाइटी सेंट्रिक इधर. Yeah. मतलब आप ये क्या काफी केसेस ये भी होता था, स्पेशली पिछले जनरेशंस में, कि it was majorly society centric and very less of relationship centric. Yeah, it was all about family and not that person who's joining the family. राइट. तो अगर आप मिडवे में ढूंढ लो ना इस चीज को, कि अगर मुझे एज अ सेंस ऑफ पर्पस दिखता है रिलेशनशिप एंड सोसाइटी को भी सर्व करने का, तो आई विल नॉट डू इट 100%, लेट मी डू 50-50. कि मैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहा हूँ, अपने बच्चे अपने वाइफ के बारे में भी सोच रहा हूँ, साथ साथ मैं बाहर का भी सोच रहा हूँ, माई फैमिली का भी, एक्सटेंडेड फैमिली का भी सोच रहा हूँ, तो स्टिल डुएबल थिंग. Yeah. तो बैलेंस हो पा रहा है. अगर आप 80-20 करोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे. Challenges आएंगे. तो Perfect. वो मिडवे पे आना, एंड सेम फॉर द वुमेन टू आल्सो अंडरस्टैंड कि मे बी ही इज ड्रिवन बाय दैट, दैट गिव्स हिम सम सेंस ऑफ पर्पस. तो उसको हम उस तरीके से डायरेक्ट करें कि इट्स अगेन नॉट अ क्वेश्चन ऑन यू दैट ही लव्स देम मोर देन यू. A lot of times it happens like that कि why are you choosing them over you, Yeah. over me? But it may not be just like with that. Maybe they love you as well, but शायद उधर उस तरीके से निकल नहीं पा रहा. तो दोनों को आई थिंक शिफ्ट करना माइंडसेट में बहुत जरूरी है. Yeah. कितना करना है, इन मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट केसेस मेन को ज़्यादा करना है, आई वुड से स्टिल, बिकॉज जिस तरीके से सोसाइटी कंडीशन हुई है, इट हैज़ बीन अ वेरी मेल सेंट्रिक रूल्स एंड लॉज एंड एवरीथिंग. 100%. तो वुमेन हैव बीन इग्नोर्ड. तो अगर शिफ्ट की बात की जाए तो 70% मेन को करना है, वुमेन को 30% करना है, बट करना दोनों को है. Yeah. 100. So after this, I want to talk about being emotionally safe. So emotional needs की बात हो गई है, emotional availability की बात हो गई है. One very major aspect of any relationship is where I feel emotional safety. What is emotional safety? Do you have any examples कि how can you make somebody feel emotionally safe also in a relationship? सो जब हम बात करते हैं इमोशनल सेफ्टी की, सो दैट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग को रिलेशन विद सिक्योरिटी. Okay. कि जितना हम सिक्योर फील करेंगे एक इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे वहाँ. Yeah. विच मीन्स दैट अगर ये मेरा घर है एंड आई नो दिस इज माई रूम एंड दिस इज द बेड आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन, इस बेड पे रात में मुझे अच्छी नींद आने वाली है. बाहर हॉरिफिक क्राइम्स हो रहे हैं, हॉरिफिक टू हॉरिफिक क्राइम्स हो रहे हैं, द वर्ल्ड इज गेटिंग बर्न्ड, बट मुझे नींद अच्छी आ रही है. क्यों आ रही है? बिकॉज आई नो माई डोर इज लॉक्ड Yeah. and I'm safe and secure in this environment. This is the power of security. Once you feel secure, once you feel safe, you automatically feel confident to explore the world. If you do not feel secure, you do not feel safe, you'll be scared. ये बिल्डिंग नहीं होता और हम रोड पे रह रहे होते और वर्ल्ड इज बर्निंग, then it would impact me as well. Same goes for relationships. अगर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी दे देता है, which means that
Be whoever you are. I'm there with you. What does it really mean? It means that I have the liberty to express and experiment around my thoughts, my feelings, my hobbies, my passion, my work, everything around it. I know I'm not going to be judged for it. But अगर वो safety नहीं मिलता है तो क्या होगा? I'll constantly take every step with caution. ये नहीं कर दूँ तो कुछ गलत ना हो जाए, ये कर दूँ तो गलत ना हो जाए, ऐसा ना कर दूँ, ऐसा ना बोल दूँ। तो हम एक बहुत ही शेल में रहेंगे। जब शेल में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। बिकॉज़ शेल में रहना मतलब क्या, कुछ दब-दब के रह रहे हो ना। दब-दब के क्या होता है, रिटेलिएशन आता है, रिपल्सिवनेस आता है, रिबेलियस बिहेवियर आता है। सो दोज़ आर द थिंग्स दैट द मोर यू सप्रेस समथिंग, द मोर दैट रिबेलियन कम्स आउट। तो ये समझना ज़रूरी है कि सेफ्टी दोनों साइड से बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी प्रोवाइड करना। यू कैन बी योरसेल्फ। इट्स वेरी ईज़ी टू से फॉर मी बट नॉट सो ईज़ी टू इम्प्लीमेंट। बट इट कम्स विद स्मॉल प्रैक्टिसेस जो हमने बात की थी, बाय एक्टिव लिसनिंग, by understanding them, by understanding the triggers, by understanding what do they want out of life and being clear about your approaches in life. I think उससे सेफ्टी आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने पार्टनर को, खुद को भी। तमाशा, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी एज वेल। उसमें एक इमोशनल अनसेफ्टी और सेफ्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जब रणवीर द मिड पार्ट ऑफ द मूवी जहाँ पे रणवीर वाज ट्राइंग टू प्रपोज टू दीपिका एंड शी डिसएग्रीज, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू रणबीर एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एंड फैंसी एंड नाइस कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ जो सही होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए फॉर द रिलेशनशिप टू वर्क, बट शी डिड नॉट फील सेफ। दीपिका डिड नॉट फील इमोशनली सेफ टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी कहीं नहीं थी। इट वॉज अ मैकेनिकल थिंग दैट रणवीर वॉज डूइंग एंड ही फेल्ट दैट मैं तो वो प्रोवाइड कर रहा हूँ सब कुछ ना जो एक मैन को प्रोवाइड करना चाहिए। तो प्रोवाइड, दैट्स थिंग अबाउट इट। हमारे दिमाग में being a provider means having a good job and sending money and fulfilling the desires and taking out dates maybe once in a while and just doing some mechanical work. But emotional safety does not care about what you provide in terms of finances. Emotional safety means actually being vulnerable, actually allowing the other person to be vulnerable, being yourself and allowing the other person to be themselves. जो दीपिका के पास कभी नहीं था उस इनिशियल फेज में। शी फेल्ट दैट व्हेन दे वर ट्रैवलिंग, बट वंस दे मीट इन इंडिया वहाँ पर वो सेफ्टी कभी मिला ही नहीं था। जब वो सेफ्टी नहीं मिला था तो ऑटोमेटिकली शी वाज डिटैच्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप। So do you think like being vulnerable is related to providing emotional safety in a relationship? एब्सोल्युटली, बिकॉज आप जब वल्नरेबल हो गए वो कब होगा? आप खुल के कब निकलोगे किसी भी रिलेशनशिप में? जो आपको डर नहीं होगा ना। अगर आपको डर है तो क्या आप खुल पाओगे? यू वोंट। आपको डर रहेगा ना कि हाउ डू आई बी कंप्लीटली रॉ हेयर विदाउट बीइंग जज्ड। सो दैट फियर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन इट। कि जितनी वल्नरेबिलिटी आएगी उतना स्ट्रेंथ बनेगा रिलेशनशिप का और उतना सेफ्टी क्रिएट होगा। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बच्चे के टर्म्स में सोचा जाए, छोटा सा बच्चा जब ग्रो हो रहा होता है तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के चलना चाहता है कि हाथ पकड़ के चलना है। थोड़ा और बड़ा होता है तो वो खुद हाथ छोड़ के चलना चाहता है, लेकिन फिर वो देखता है कि माई पेरेंट्स आर अराउंड और नॉट। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि वो आपका हाथ पकड़ना भी नहीं चाहता है और वो घूमना भी चाहता है, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहता है कि आप खो आगे नहीं हो। The moment they do not see you, they'll panic. They're not holding your hands. That's an important point. They're not holding your hands. But they want you around. Why so? Because they'll feel safe around you. अगर ये पेरेंट्स उनको इन्वायरमेंट ना दे बच्चे को सेफ्टी का, या तो एक्स्ट्रा हाथ पकड़ ले या तो हाथ पकड़े ही ना। दोनों केसेस में प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा हाथ पकड़ना मतलब आप बच्चे को एक्सप्लोर करने नहीं दे रहे हो, जो कि होता है रिलेशनशिप में भी कि आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जा रहे हो। तो यू टू होल्डिंग टू मच, सो मच सो दैट द पर्सन इज गेटिंग too much suffocated by that. That is also a problem. And also being not there at all. कि मैं हूँ, तुम अपना काम करो, घूम के आओ बाहर नीचे पार्क में खेलते रहो, बट मैं देख रहा हूँ ऊपर से, मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो बच्चे को तो डर लगेगा ना, तो बच्चा विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। बच्चे को डर लग रहा है ना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर नाउ। सो द सेम लॉजिक अप्लाइज इन रिलेशनशिप्स। So the right balance राइट बैलेंस। कि बहुत भी इमोशनल सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करना है एंड नॉट टू लिटिल ऑल्सो, जस्ट द राइट अमाउंट दैट maybe your relationship would require. Absolutely. Yeah. And I think most of the times men find it very difficult to be vulnerable in a relationship because somewhere, as you said, एक personal attack उनको लग सकता है कि or maybe I will be judged, or maybe it's also a sign of being weak. Absolutely. For men, being too vulnerable is like कि यार तुम्हें भी ऐसे फील होता है, like अच्छा वो भी एक they're seeing their own mirror no when they talk about it बिल्कुल बिल्कुल। somewhere or the other. यहाँ भी एक चीज़ है ना कि सोसाइटी भी इस तरीके से इनग्रेन्ड हो गई है ना कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इफ आई पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ वीक पर्सन और अ वल्नरेबल पर्सन, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि
a lot of women won't be attracted to me, and that's a fact. Oh. आप खुद नोटिस करो कि if there are two people around you, two men around you, one man is confident positive negative तरीके से कुछ भी मान लेते हैं, but confident, showcasing their confidence and pride in certain ways. They see as a very sorted and organized person versus the other person who feels a bit dismissive and bit soft and weak in terms of decision making. So आपका भी attraction automatically उस confident face पे जाएगा ना. You won't be attracted to that vulnerable or the weak person who's trying to showcase their weakness. So is it Bollywood movies जिन्होंने No, society it's societal. It's not just Bollywood, it's societal. ये So- biological है. Oh. Because अगर आप evolutionary तरीके से देखोगे तो women would want to be around a man who can take care of that woman. who's strong, who can Strong. take decisions. Right, strong, complete clarity about what they want to do, complete decision maker as well. Yeah. बट वही बात आ गई कि अब हमें वो चेंजेस करने जरूरी है कि इट कैन नॉट बी जस्ट दिस और दैट. एक पर्सन हु इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग कंप्लीट ओनरशिप ऑफ देयर लाइफ के भी अपने वीक मोमेंट्स होंगे, तो टेकिंग ओनरशिप ऑफ दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीज़ दोनों साइड से चेंज करने की जरूरत है, फॉर मेन टू स्टार्ट स्पीकिंग अप एंड taking more ownership of their feelings as well, and for also women in their lives to not judge that much too much. कि you अगर आपको फील हो गया ना कि मेरे ये एक्सप्रेशन से people are not going to like me, then I will not showcase that behavior, as simple as that. Yeah. Just like the same thing with women as well ना, कि अगर women को बता दीजिए कि these are the beauty standards, and if you do not oblige by these beauty standards, no one is going to like you. If you're like a very upfront person, men like soft women. If you're being a very upfront person talking about your needs, then men won't like you. तो आप भी सप्रेस करने लग जाओगे. जब बात कर रहे थे कि काफी बार women बहुत pleasing नेचर में चले Yeah. जाते हैं. It comes from there as That well. is so true. तो सोसाइटी का रोल बहुत बड़ा है इन चीज़ों में. So for things to change, society has to change. Yeah, And for society to change, we need to change. 100%. तो वो स्मॉल एंड ग्रेजुअल हम स्टेप ले सकते हैं. रियल चेंजेस बहुत समय बाद आएगा, बट फिर भी हम स्टेप ले सकते Step हैं ले इस तरीके के लिए. So, Shivam, that was an amazing podcast. I'm sure कि listeners अपने बहुत सारे notes बनाए रहेंगे and काफ़ी कुछ चीज़ें उनके relationships में and personal relationship with their self also will change after whatever you've said. I think for me also a lot of takeaways from this one. एक last before we end this podcast, daily practices maybe that I or the listeners can do to emotionally express better in relationships or to being more emotionally aware of what they are feeling. Right. First, have the practice of writing things down or journaling things on a daily basis, which means introspecting about your emotions, feelings, thoughts, good and the bad, everything about it, ताकि आप introspect करना चालू करो उन चीज़ों के बारे में. Second thing, spend some time with the nature so that you can relax, go out for walk or go to the gym, do something जहाँ पे आप engage कर रहे हो अपने body को with the nature and moving your body as well. Third thing is to also take care of your physical needs as well. कि काफ़ी बार हम फिजिकल एंटिटी और इमोशनल एंटिटी को बहुत अलग अलग देखते हैं, बट इट इज़ नॉट. योर इमोशनल एंटिटी इज़ वेरी स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन हाउ योर फिजिकल एंटिटीज आर गेटिंग मेट. इफ योर फिजिकल नीड्स आर नॉट गेटिंग मेट, योर इमोशनल एंटिटी विल हैव टू कवर अप थ्रू सर्टेन हार्मोन्स. राइट. तो हम कह रहे हैं कि हम सुबह उठ के हम सीधे लंच कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. सो इफ आई एम गिविंग हैफाजार्ड रिएक्शंस टू माई ब्रेन, टू माई बॉडी, my brain will also have to make up for that, and that can only happen through hormones, excess flux of hormones. So take care of your body as well. Be disciplined about your approach. खाना सही से, सोना सही से, certain things that you have to do about it. Fourth thing, do something that involves some sense of purpose. A very purposeless life is a recipe for disaster, because then you're just running around in circles without actually feeling fulfilled about your life. So have some purpose. And I'm not necessarily saying कि purpose काम से ही आएगा. Your purpose could also be spending time with your wife and your kids, or your family, or your friends. Have some purpose for yourself. अगर काम से नहीं मिल रहा तो बाहर उसको एक ढूंढो, बट कुछ तो रखो जो आपको पर्पस दे. एंड वन लास्ट थिंग, हैव सम गुड कॉन्वर्सेशंस. अगेन, किसी से बात करो, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वहाँ पे लोनलीनेस इज ऑलरेडी एन एपिडेमिक. एंड जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो इट इज एक्चुअली पुशिंग अस क्लोजर टू दैट एपिडेमिक. The more we connect that lively, natural talking, natural environment of communication, the more we feel homely, the more we feel secure. So these things, if we do on a daily basis, it can definitely transform your emotional life. Okay. Thank you so much. Thank you so much. for having me. Absolutely amazing podcast. Thank you so much for having me. It was really wonderful for me as well. It was really like I'm really really happy to have you on this podcast and काफ़ी changes मुझे खुद को लग रहा है कि अब
understood a lot of things. So thank you, Shivam, for being on Raw with Sneha. It was absolutely beautiful to have this conversation. Looking forward to part 2 with you. Absolutely. Soon. Thank you so much. Thank you so much for having me. आई होप ये एपिसोड ने आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स को आंसर किया है. यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट आउट हियर इज दैट शिवम ने एक अब्स्ट्रैक्ट सी चीज जो इमोशंस है, जो काफी कॉम्प्लेक्स लग सकती है बाहर से, उसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है. आई एम डेफिनेटली श्योर दैट अ लॉट ऑफ कपल्स are going to fight in a better way and are going to deal with fights in a better way after they've watched this episode. Do not forget to share this episode with somebody who's struggling to understand their emotions. And I'm going to see you guys in the next video. Till then, keep rising and embracing in love. And do not forget, I roar you.